بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمد للہ۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ الحمد للہ. اچھا، یہ آواز سب کو کلیئر آ رہی جی میم مجھے آ تو رہی ہے آ لیکن رہی ہے۔ تھوڑا سا شور بھی ہے۔ ہے؟ سلو ہے؟ نہیں میم آواز کلیئر ہے آپ کی لیکن شور تھوڑا سا آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں شاید کسی کا مائک کھلا ہوا ہے۔ اچھا. چلیے، دوران علاقے مجھے بتائیے گا اگر یہ شور کنٹینیو رہا تو پھر میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کو جو ہم نے پہلا پارٹ 1 کا بھی کیے 3 لیولس، تو آپ کو اسما کی میرا خیال ہے کافی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اسما والا جو جی تھا ہم نے کیا. جی جی تو اب انشاءاللہ ہم فیل کا چیپٹر ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تو اس کے جو ہے اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو کچھ تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوگی ساتھ ساتھ کہ ہمارا کیسا انشاءاللہ فیل کا اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے. تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے آسما کے ٹاپک سے. تو انشاءاللہ جو ہے ہم نے اب ساتھ فیل کو بھی لے کے جانا ہے اور اسما کو بھی ساتھ ہی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پہ سب سے پہلے جو لیکچر سٹارٹ میں یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا پچھلا جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں کرنا چاہوں گی کہ جو ہے ہمارا تو ہم نے جیسے پڑھا کہ ہمارا جو ہے حرکات اور الفاظ کے ملنے سے جو ہے حرکات اور حروف تہجی جو ہے حروف کے ملنے سے اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ بامانی اور بے معنی دونوں طرح کے ہوتے ہیں. تو لیکن جو ہر بامانی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کلمات کہلاتے ہیں. بامانی جو لفظ ہوتا ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے، اور کلمہ کی 3 اقسام ہم نے پڑھی: اسم، فعل اور حرف. اور اسم جو ہے ہم نے اس کو اچھے سے کر لیا ڈسکس، اور اس میں کچھ حروف ہم نے کیے، حروف جر کیے زیادہ تر، اور ایک حرف ناصبہ بھی ہم نے پڑھا، انا کو بھی ہم نے پڑھا اس میں. تو حمزہ اور الف کا جو فرق ہے اس کے بارے میں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جو اپنے اپنے پہلے رول نمبرز لکھ لیں اپنے، تاکہ آسانی ہو آپ کو محاسب کرنے میں. اپنے جو ہے رول نمبر کائنڈلی لازمن لکھیں آپ کو، تاکہ میں رول نمبر سے پکاروں. رول نمبر 42 ہے. مجھے یہ بتائیں ذرا، حمزہ اور الف میں ڈسٹینس کیا ہے؟ حمزہ میم اور الف جی، حمزہ جو ہے نا وہ اس پہ حرکت ہوتی ہے اور الف پہ حرکت نہیں ہوتی ہے۔ جب الف پر حرکت آ جائے گی تو پھر ہم اسے حمزہ پکاریں گے۔ اچھا، تو یہ حمزہ جو ہے کون کون سی حرکات ہم حمزہ کو دیتے ہیں؟ حمزہ کو ہم ساکن بھی دے سکتے ہیں اور زبر زیر پیش مطلب یہ بھی دے سکتے ہیں۔ زیادہ اگر جیسے حمزہ الوصل ہے تو اس کے ساتھ پھر حمزہ پر الف لگتا ہے، تو زبر لگتا ہے، فتحہ لگتا ہے۔ اور ویسے حمزہ پہ مطلب کوئی بھی حرکت یا سکون آ سکتا ہے، ہاں، تو لیکن یہ جو سکون ہے. جو بھی حرکت ہوگی وہ حمزہ کہلائے گا، وہ اگر بغیر حرکت کا ہوگا تو الف کہلائے گا۔ جی، اگر یہ دیکھیں، اگر یہ یعنی کہ جو سکون کی ہے وہ سکون کو بھی ہم حرکت میں لے کے آتے ہیں. سکون کی جو علامت ہوتی ہے اس کو ہم حرکت کہتے ہیں. ہاں میرے خیال سے تو وہ اس کا وہ ہے نا اعراب، مطلب وہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس کو ساکن رکھنا ہے یا اس کو مطلب کس طرح سے پڑھنا ہے، تو نہیں، وہ بھی میرا حرکت، خیال اچھا سے یہ حرکت وہ کے نہیں، لفظ سے آپ دیکھیں. حرکت ہے، ہاں وہ سکون تو سکون ہے، لیکن مطلب جس جس الف پر جزم یا حرکات ہو
उसे हमजा कहते हैं। हाँ, यानी कि कोई अलामत भी सुकून की अलामत हो या फिर तीन हरकत जी जेर जी जबर जी पेश में से कोई भी हो तो ये जी जी। हमजा कहलाएगा। हाँ हाँ जी जी जी। तो अच्छा, आप हमारे यहाँ हमने कहा कि हरूफ और जो हरकत है या अलामात के मिलने से लफ्ज वजूद में आता है। जी तो इस हर बामानी लफ्ज को कलिमा कहते हैं। तो कलमा जी की जो अक़साम है वो हमने कहा वो तीन अक़साम है। इस्म, तो जी। आप इस्म को जरा मुझे डिफाइन करके बताएं कि इस्म हम किसको कहते हैं। इसमें किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी काम का नाम भी हो सकता है, कोई मतलब सिफत भी हो सकती है। मतलब हाँ किसी का नाम, चाहे कि किसी इंसान का नाम हो सकता है, जानवर का, जगह का, या सिफत हो सकती है, या कोई किसी काम का नाम भी इसम कहलाता है। हाँ, तो ये काम का नाम भी हमने कहा इस्म कहलाता है। तो ये काम का नाम इसको क्या टेक्निकली कहते हैं अरबी की रूह से, ग्रामर की रूह से। ग्रामर की रोज से मजदर। हाँ इसमें बिल्कुल, मजदर। हम इसको मसदर कहते जी। हैं। हाँ इसको जी मसदर कहते हैं कि काम जी के नाम को हम मसदर कहेंगे। तो ये जी। इस हमने फेल की भी जो है ना, इसम और फेल में क्या डिफरेंस होगा, यानी कि वो भी कलिमा है, वो भी कलमा है, हरकत और अल्फाज के हरूफ के मिलने से बने हैं दोनों। तो डिफरेंस कैसे हम पहचानेंगे कि इसम और फेल में। अच्छा, इसमें जो है ना वो उससे ना जमाने की वो नहीं है। इसमें जो होता है ना वो जमाने के उसकी कैद के साथ नहीं आता। फेल जो हमारे पास है ना, वो जमाने में एक काम का होना करना पाया जाता है, उसको हम फेल कहते हैं। जी, मतलब यानी कि वो गया। जमाने के साथ जिस जी, जमाने के कलिमा साथ में जमाने का, जमाने का मालूम पड़ता है उससे हमें। तो मतलब वो अभी वो। हमारे पास जी जी। उसको हम मतलब फेल हाल है, कहेंगे जिसमें। मुस्तकबिल है, या फिर माजी में है, तो वो हमें उससे पता चलता है कि वो गया या जाएगा, या वो गया है। अच्छा तो जी। ये फेल अच्छा है। साथ, और तो और ये भी जाना जो है, जाना है वो काम हम्म, का नाम है, तो वो इसम है। जी वो इसमें है। अच्छा ये आप जी बताएं कि यहाँ पे हमने कहा कि फेल की तीन जो है ना तीन जमाने हैं, मतलब तीन अकसाम है जी। फेल की ना। तो हाँ वो कौन कौन सी हैं, हमें अरबी के रूह से आपने बताना है। उर्दू और इंग्लिश का तो हमें पता है कि वो उसमें तीन फेल हैं, हाँ। तीन जमाने हैं। तो हमें अरबी की अच्छा, ग्रामर की थोड़ा सा अरबी में बताएं। हम उसमें हम पहले माजी और उसमें मुजारे, हम दो दो तरह से उसको वो करते हैं। माजी में हम माजी को डिस्कस करते हैं, और मुजारे में हाल और मुस्तकबिल हम दोनों का वो लेते हैं। तो वो हमें तो रेफरेंस अच्छा, कॉन्टेक्स्ट पता चलता है पीछे से कि वो हाल के बारे में बात हो रही है या मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है। अ, अच्छा टू द पॉइंट, अगर इसका एक लाइन में इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। टू द पॉइंट होगा अगर कहेंगे हम फेल माजी जो है अरबी में कितने जमाने होते हैं और अरबी में कितने अफ़आल इस्तेमाल होते हैं उनके अरबी लिए। में दो अफ़ाल इस्तेमाल होते हैं, पहले मुजारे और पहले माजी। और जमाने, और जमाने तीन होते हैं। हाँ जमाने जमाने तीन तीन ही होते होते हैं। हैं। जमाने तीन होते हैं, लेकिन उसके लिए हम जो फेल वो इस्तेमाल करते हैं, वो दो इस्तेमाल करते हैं। हाँ एक दो जमाना होते हैं, माजी के ठीक लिए है। इस्तेमाल करते हैं, और मजारे जो है वो हाल और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। जी बारकल्लाह फीक। अच्छा ये हरूफ जो है, हरूफ जो है ये क्या चीज़ है। शुरूफ जो है ना वो दो या दो से ज्यादा जो है ना अल्फाज मिलते हैं ना, तो फिर उसका जो मजमूआ है वो हर्फ बनाता है। यानी दो हर्फ होते नहीं हैं या उससे ज्यादा हर्फ होते हैं, तो उसका मजमुआ जब मिलता है तो हर्फ बनाता है। जैसे फा नहीं। और या मिलके फी बनाते हैं, तो हम्म। ये एक हर्फ है। अच्छा ये जैसे। ये तो फिर वो तो हर्फ है। अच्छा ला जो है वो भी एक हर्फ है, मतलब ला, वो जी तो फिर ला भी एक हर्फ है। लाम हमने बना, हाँ लाम भी हरूफ जारा में से आता है, वो भी एक हर्फ है। और इसके जी। अलावा बा भी एक हर्फ है। तो फिर ये क्या, आप तो कह रही दो होते हैं, इससे इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट बताएं। इसकी डेफिनेशन मतलब हर्फ हर्फ से फिर उसकी हरकत हो सकती है। जी बिल्कुल। आप मतलब। चले अब आप अपना माइक म्यूट करें, अब इंशाल्लाह हम जी किसी और जी जी स्टूडेंट को साथ बुलाते हैं, उनसे हर्फ की डेफिनेशन पूछते हैं। जी जी। यहाँ पे है हमारे पास रोल नंबर 63। आप मैम बताएं मैं हर्फ अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम।
جی میم میم میں وعلیکم حرف رول جو نمبر کال کر دوں گی، آپ باقی دیکھ لیں. میں شہنیرہ جی آپ نے کیا میم آپ مجھ سے سسٹر پوچھ رہی ہیں؟ نہیں نہیں سسٹر شنیلا، ایک منٹ، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں سسٹر شنیلا؟ میم میں یہ کہہ رہی ہوں میں رول نمبر کال کر دوں گی، آپ باقی کوشچن کر لیں. میں جی ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس جی ابھی شام. ریویژن ہے نا، تو پھر انشاءاللہ ہم ایکسرسائز شروع کرتے ہیں، تو میں آپ کی طرف آتی ہوں. ٹھیک ہے جی چلیے، میں جی انشاءاللہ میم، نمبر میم حرف آپ بتائیں. جی جی حرف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کے کوئی معنی، مطلب ویسے یہ لیٹر جس طرح الگ الگ ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا نا، لیکن جب یہ ملتا ہے دوسری چیزوں کے ساتھ تو پھر معنی بناتا ہے. نہیں، مانی تو ہوتا ہے. اب فی کا مانی تو میں ہے، میم وہ تو حرف وہ تو جارہ، مانی آپ تو حرف ہوتا ہے. جارہ کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں نہیں، کوئی بھی حروف ہو، مانی تو ہر حرف کا ہوتا ہے. مطلب یہ حروف تہجی کی بات نہیں ہو رہی. مطلب ہم نے جب حرف کا پڑھا، تو اب یہ جو بتائیں کہ ہم نے جو اس کلمہ کی اقسام میں ہم نے اسم فعل اور میم حرف خالی پڑھا. خالی حرف کا کوئی معنی نہیں ہے. جیسے آپ کر لیں میں یا پر، تو ہمیں اس سے کیا سمجھ آئے گی کہ وہ کس چیز کے لیے. لیکن اب ہم سمجھیں کہہ رہے ہیں کہ چھت کے اوپر یا مسجد میں، تو اس کے کسی کے ساتھ اسم کے ساتھ مل کے یا اس ساتھ مل کے وہ اپنے معنی دیتا ہے. اچھا، مانی تو ہوتا ہے. آپ تھوڑی سی کریکشن کر لیں، مانی تو حرف کا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو معنی نا وہ یعنی کہ اسم اور فعل کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے جو حرف، تو پھر اس کا مطلب سمجھ آتی ہے. جی مطلب مطلب جی ایسے میم. تو حرف کا فلا بھی اس کا معنی بھی ہے، فی کا معنی بھی ہے، ان کے معنی ہوں تو ہیں. لیکن اچھا جب میم، میں یہ اس اسم یا ان کے اس میننگ کی بات نہیں کر رہی، ورنہ یہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ الگ اگر ان کو خالی یوز کیا جائے تو وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا اس طرح ہاں سے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں میننگ آتا. سمجھ. ہاں جی جی ہاں، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، مجھے جی پتا ہے میم. آپ کہنا جو چاہ رہی ہیں وہ سمجھانی تھوڑا سا تھا، لیکن الحمدللہ آپ اچھا کر رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اسم کی جو ہے، اسم کو کسی بھی جملے میں استعمال کرنے کے لیے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ہمیں کن چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے؟ میم کس طرح مطلب؟ اچھا اسم کی وہ چار چیزوں کا جو ہے کہ چار چیزیں جاننی ہوتی ہیں کہ وہ اسم اس کی جنس کا، اس کے عدد کا. جنس یہ کہ مذکر ہے یا مؤنث، اور عدد میں کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اور اس کے اعراب کا پتہ کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، اور فورتھ چیز ہوتی ہے وسعت کا کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. جی اچھا، یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی بتانا چاہوں گی کہ ہم نے کہا کہ ہم جو ہے نا اسماء کے اوپر بھی جو ہے نا اعراب استعمال ہوتے ہیں. تو اعراب جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ میم کیا مطلب اعراب جو ہم یوز ہاں کرتے ہیں مرفوع منصوب جی جی، وغیرہ؟ ہم نے کہا جی جی ہاں، منصوب مرفوع اور مجرور جو ہے نا ہم نے کہا اعراب ہیں یہ. تو کیونکہ یہ بڑا ہوں امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہم جنس کو بھی ایزیلی ہم نے سمجھ لیا، ہم نے جو ہے نا عدد کو بھی سمجھ لیا، وہ جو ہے وسعت کو بھی ہم نے کہا، معرفہ اور نکرہ ہو گئی ہم نے. لیکن ہوں. یہ جو اعراب ہے یہ اس کو ڈیفائن کریں تھوڑا سا. جی میم، جو بھی اسم ہوتا ہے اس کا ہم اعراب لگاتے ہیں نا. جو ہمارا پہلا کانسیپٹ تھا حرکات کے بارے میں وہ ڈفرینٹ تھا. یہ ہوتا ہے کہ اسم کے آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم اس کو اعراب کہتے ہیں. ہاں، کہ اس وہ کو ہم اعراب کہتے ہیں. دیکھیں حرکات ہم کہہ رہے ہیں، اس میں بھی حرکات شامل ہیں یعنی کہ اعراب کے اندر. ہوں لیکن جو حرکات ہے نا، دیکھیں پورا اسم ہے نا، اس کے شروع سے لے کے اینڈ تک کوئی نہ کوئی حرکت آئے گی اس کے اوپر نا. جی لیکن اعراب محسوس اس کو کہیں گے جو اینڈ پہ آئے گا. ٹھیک ہے. جی تو تو اس میں جو ہے اعراب سے کیا جو لفظ ہے، جو کلمہ ہے، اس کے معنی چینج ہوتے ہیں. نہیں میم، معنی چینج نہیں ہوتے. پھر کیا ہوتا ہے اعراب کی تبدیلی سے کیا ہوتا ہے؟ میم معنی تو چینج نہیں ہوں گے. جیسے ہم سمجھیں کوئی بھی اسم دے رہے ہیں تو میم مختلف ان کے ساتھ لگتا ہے نا. جیسے کسی میں ہمیں نصب کی ضرورت ہوتی ہے، کسی میں مرفوع. جیسے ہم جملہ اسمیہ بناتے ہیں تو اس میں ہمیں مرفوع چاہیے ہوتا ہے، اور جو مبتدا ہے وہ بھی مرفوع چاہیے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، مبتدا کا خبر ہوتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے. مجھے صحیح بتانا نہیں آ رہا کہ آپ ہاں کیا پوچھنا چاہتے ہاں، نہیں ٹھیک ہے، آپ صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہیں. میننگ تو جزاک چینج اللہ نہیں ہوتے اس خیر. کے. ہاں، میننگ نہیں چینج ہوتے. ٹھیک ہے، اب آپ اپنا مائک میوٹ کر. رول نمبر 23 ہے نیکسٹ، آپ کنٹینیو کریں گی اسی کو. اب آپ اس کو بتائیں کہ ہم نے اعراب کے بارے میں جو میں پوچھ رہی تھی اس کو کنٹینیو کریں کہ جی اعراب السلام اصل علیکم. میں
हमने पढ़ लिया कि जी वो एंडिंग जो है किसी भी कलमे की उसको चेंज होती है, तो उससे क्या और जी। फर्क पड़ता है? हम एराब जो है ना, सर ने बताया था कि ये किसी भी जब हम इस्म का एराब पहचान लेते हैं तो ये हमें ये बताता है कि इस इस्म का जुमले में क्या मुकाम है। तो ये जी, हमें स्टेटस। जानना, इससे पता चल जाता है कि जैसे अभी हम रिसेंटली फाइल पढ़कर आए हैं, तो हमें जुमले में ये पता चलेगा कि जो मरफू इस्म हमारे इस जुमले में, जुमला फेलिया में है, वो फाइल है। तो इस तरह से एराब का जानना बहुत जरूरी है, जो हमें ये बताता है। इसी तरह हम एराब को अगर हम ये देखें कि अगर हम मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी बनाते हैं, तो उसमें हमें एराब ही ये बताते हैं कि ये प्लेस मुजाफ इलैह के, क्योंकि वो मजरूर इस्म है। और इसी तरह जब हम मुरक्कब जारी बनाते हैं, हालांकि वो बहुत इजी है देखने में, लेकिन फिर भी हम उसको एक प्लेस देते हैं कि ये मजरूर है, तो ये इसका हर्फ जर है, मुरक्कब जारी इसने बना दिया। तो यही समझ आता है कि जो एराब है वो आपको प्लेस देता है, एक नाउन की हमें प्लेस बताता है कि किस जगह हम जुमले में सेट करें इसको। उसका फिर हमें मफहूम और हाँ मायने बिल्कुल। तरतीब देने में हमें इजी हो जाता हाँ, अब ये जैसे आपने इस्तेमाल किया कि हम ना हर जो मजरूर इसम है उससे पहले हम हरूफ इस्तेमाल करते हैं, हरूफ जारा, तो हमें पता चलता है अगले वाला इसम मजरूर आ गया। तो हम इसका मतलब है ये है। फैक्टर हुआ ना, एक ये हर्फ जो है एक फैक्टर हुआ, इसकी वजह से हमारे अगले वाले जो है ना इसम का इराब जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, उसके जी इसम का इराब चेंज यानी कि चेंज कर दिया उसका इराब। तो ये एक जी। इनके एक वैसे तो ये हर्फ ही है, हर्फ जारा है, तो इसके अगले वाला इसम मजरूर होगा, वो हर्फ जारा की वजह से होगा। लेकिन हम कहेंगे ये एक फैक्टर हुआ कि इसकी वजह से अगले वाले हर्फ का इराब चेंज हो गया है। जी ठीक है, जैसे अब हम जो फेल में टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो फाइल होगा वो होगा हालते रफ में मर्फ होगा। रफ में होगा हाँ, जी। यानी कि मरफू होगा। तो अब यहाँ पे जी हमने जब अस्मा का भी इराब में पढ़ा, तो अस्मा के इराब में हमने पढ़ा वो उसके इराब जो होते हैं, एक तो आप में से कोई स्टूडेंट आएंगी तो फिर हम उनके साथ करेंगे। अ, आप शनीना आप बताएं कौन जो स्टूडेंट है नेक्स्ट, आप उनके साथ हम डिस्कस करेंगे जी इराब को। मैम, कौन करने चाहेगा आप में से? आयशा? जी। जी आयशा मैं कर हाँ, लेती हूँ सर जी। जी मैं करती हूँ मैम, मैं पहले से पहले। आप कर लें, आप कर लें, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, आप कर चलो। लो बेटा। हाँ, अच्छा प्लीज अपना रोल नंबर, सिस्टर आयशा आपने नहीं लिखा, काइंडली अपना रोल नंबर मैम लाजमन मैं लिखें। जो रोल नंबर मैम। के साथ होंगे मैं उनको मैम कॉल करूंगी, ठीक है? मैम मैम मैंने आयशा पहले। सर 26 है। अच्छा, आप ना शुरू में रोल नंबर लिखा करें, क्योंकि वो लास्ट वाला ना नजर नहीं आता बार बार ना स्क्रीन पे। जी तो सॉरी इसलिए वो जो है ना ठीक है, आप शुरू में रोल नंबर लिख लिया करें अपना। अच्छा, जी ये जी जी। मैंने आपसे मुझे पूछना है कि अब हमारे पास जो बेसिक हरकत हैं, यानी कि इराब हमने कहा उसमें जो है इराब में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब वो अब इराब इसम का हम कैसे जाहिर करते हैं, एक किसी इसम का इराब किस किस तरह से जाहिर होता है? इसम का एरर कैसे है? मैम वो हरका उससे होता है ना, तनवीन से। दो जबर दो जेर और दो जेर की तनवीन से। हाँ, और सिर्फ दो जबर दो जेर की तनवीन से होता है, और किसी चीज से नहीं होता। मैम दो जबर दो तनवीन से होता है ना, अमन हरकत से होता है। और तनवीन से तो हो गया है, तो ये तो एक चीज है ना इराब में, ये एक चीज है नंबर वन। ये जो है ना हमने कहा नंबर वन जो है ना हम इसको लगा देते हैं, क्योंकि ये जो है अस्मा की जो इस तरह के इराब है, ये जो जेर जबर पेश या तनवीन से जाहिर होते हैं, हम इसको कहते हैं ये बेसिक जो होती है ना प्राइमरी एंडिंग्स, इसको बेसिक एंडिंग्स कहते हैं, जो जेर जबर पेश के साथ है इसका इराब शो होता है। तो इसके अलावा भी हमने पढ़ा था इसका इराब और किस किस तरीकों से शो होता है। मैम सबसे पहले जमा साउंड से। मुजक्कर सालिम को ले लेते हैं। जमा मुजक्कर ये साउंड तो से हो होता गया है ना, ना। मैम साउंड साउंड से से होता होता है। हाँ, ये हम इसको कहते हैं, ये सेकेंडरी हम इसको इसको कह सकते हैं कि है जो साउंड से। जो हरकत के साथ ये शो हो रहा है, जो हरकत के साथ हमारे पास इराब शो हो रहा है, हम उसे कह सकते हैं ये प्राइमरी इराब है। ठीक है, जेर जबर पेश या फतह साउंड तैन से दम्मा शुरू। तैन और कसरा तैन के साथ शो हो रहा है। अब नंबर टू पे हमारे पास साउंड के साथ इराब आ गया।
तो साउंड के साथ जी कौन सा इराब है वो भी बताएं, कौन सी साउंड है और कौन सा उसके साथ शो होता है इराब। जमा सालिम मुजक्कर में आनी और आईनी। आनी जमा आनी मुजक्कर सालिम में जी आनी और ईना के आवाज होता है, ईना ईना। और दोबारा सोच लें, जमा जब दोबारा सोचें, अभी दोबारा इसको सोचें क्या है इसका है। मैम देखिए, मैम वो आनी होता है एक तो, जो चलिए मैं आपको एक मैं मुसन्नफ। आपको एक जमा मैं आपको जमा मुजक्कर सालिम देती हूँ, ठीक है। तो मैं जी आपको एक जमा, तो आप उसको बनाए, जैसे मुस्लिम उनसे हमने बना लिया मुस्लिमूना, ठीक है। आप बताएं, हम मुस्लिम उन था, जमा मुजक्कर सालिम बन गया, हमने हालते रफ में उसको क्या लेके आए हैं, मुस्लिमानी। मुस्लिमान ही। तो ये तो मुसन्ना का आप इराब कह रही हैं, ये मुसन्ना का हुआ ना। हमें जो है ना नहीं, बताएं कि मुस्लिम जमा मुजक्कर सालिम के हिसाब से बताएं। तो मैम मुस्लिमूना। मुस्लिमोना हो गया, हाँ। ये वाव नून से, अब इसके हैं कि हम हालते जमा मुजक्कर सालिम का इराब जो है हालते रफ में वाव नून ऊना की साउंड से शो हुआ, ऊना से शो जी हुआ ना। तो जी जी अब बताएं इसका हालते रफ में और रफ में हो गया, और नसब और जार में बताएं इनका इराब क्या होगा जमा मुजक्कर सालिम का। ये हीना और जैसे मैम या से ही नून से नी से होगा ना, नून से बनना हाँ, ईना और मीना, यानी कि से होगा। मुस्लिमूना हालते रफ हालते नसब और जार मुस्लिम मीना हो गया, ठीक है। जी जी। मुस्लिम मीना से हो गया, ईना की साउंड आ गई हमारे पास, ठीक है। चलिए आप अपना माइक क्लोज करें, रोल नंबर 27 है। आप आए और अब बाकी इराब का अभी टॉपिक जो है उसको कंप्लीट हम करेंगे, इसके साथ ही फिर हम अक्सर सर शुरू करेंगे। जी साहब जी। अब आपने मुझे बताना है कि हमने कहा हमारे पास प्राइमरी एंडिंग्स है, अब इनके मतलब असल जो इराब है, जो हम कहेंगे कि प्राइमरी भी कह लें इराब जो है ना उसको, वो हमने कहा जेर जबर पेश के साथ या दम्मा तैन कसरा तैन फतह तैन के साथ शो हो गया। अब नंबर टू सेकेंडरी एंडिंग्स जो होती है इराब दूसरी तरह का हमारे पास इराब आ गया, वो हमने जमा मुजक्कर सालिम में हमने ऊना और ईना की साउंड से किया है। अब हमारे पास जमा मुअन्नस सालिम का इराब जो है ना वो भी हमारे पास हरकत से नहीं शो मतलब वो किस उनकी उसका क्या इराब होगा, हरकत होगी या आवाज होगी, ये क्या होगा जमा जो मुअन्नस हमारा सालिम। जो जमा मुन्नस सालिम है उसमें दो साउंड्स कह लें आप। एक तो ये होता है कि एंड पे ता लगता है और उसके ऊपर दो पेश आती हैं तुन और आतुन आतिन आतिन। जो नसब है और जर है उसमें तीन की आवाज आएगी और दो जेर लगेंगी, और जो हमारा रफा की हालत में होगा उसकी एंड पे ता और दो पेश आएंगी, तुन होगा। यानी कि दो हमारे पास इसके जमा मुअन्नस सालिम के भी दो इराब हैं, ठीक है। जमा मुजक्कर सालिम के भी दो इराब थे हमारे पास, तो मतलब ऊना और ईना की साउंड थी हमारे पास। और जमा मुअन्नस सालिम के दो हमारे पास उसके भी दो इराब आ गए, मतलब तुन और तिन, तिन हाल से रफ में हो गया, दो पेश आ गई, या फिर अगर अल लग गया तो एक पेश भी आ सकती है, नहीं तो दो जेर हालते नसब और दो जेर ही हालते जर में हो गए हमारे पास। और ये हमारे पास इसका जमा मुअन्नस सालिम का इराब हो गया। जी जी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास मुसन्ना का एक इराब आ जाता है। अब जी मुसन्ना का इराब है ना वो हरकत से शो होता है या फिर वो जी साउंड से शो होता है। जी मुसन्ना का एराब साउंड से शो होता है। और उसकी जो साउंड होती है वो आनी और आईनी आईनी होती है। आनी हमारी जाती है रफ के लिए, और आईनी और आईनी होती है नसब और जर के लिए। हाँ, तो ये हमारी मतलब साउंड से ये इराब भी हमारा साउंड से शो हो गया। अब आप लोगों ने याद रखना है कौन सा इराब जो है ना हरकत से शो हो रहे हैं और कौन से किनके इराब जो है ना वो साउंड के साथ आ रहे हैं। अब इसके बाद मुझे बता दें, ममनू मिनस सर्फ जो होते हैं, मतलब कि जो गैर मुंसरिफ अस्मा होते हैं, उनका इराब हम कैसे शो करते हैं। जो गैर मुंसरिफ होते हैं उनमें हमारे पास तनवीन नहीं आती है, और उसको हम शो करते हैं जैसे कि एक पेश होगी और रफ हालते रफ में, और जो नसब की हालत होगी उसमें हमारे पास नसब और जर में एक एक जबर की हालत होगी। एक एक जबर से, तो ये इसका मतलब है कि ये इनका इराब भी जो गैर मुंसरिफ अस्मा है इनका इराब भी हमें हमारे पास हरकत से शो हो रहा है।
हरकत से ही हो रहा है ना, कोई साउंड तो नहीं जी है इनकी ना? जी जी। ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंगल फतहा और एक सिंगल जो है दम्मा आ गया हालत रफ में, और सिंगल फतहा आ गई हालत नसब और जर में। तो अगर हम इनके गैर मुंसरिफ अस्मा जो हैं, गैर मुंसरिफ अस्मा की जो कैटेगरीज हैं, मार्फा वाली कैटेगरीज हैं, उनको छोड़ दें हम ना, जो नकरा की कैटेगरीज है हमारे पास, उन पे हम अल दाहिर कर सकते हैं, क्योंकि मार्फा की जो कैटेगरीज है इस्माई अलम वाली हैं, उन पे तो हम अल दाहिर नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं? जो जो अस्माए अलम वाली हैं उसमें हमारा अल दाखिल नहीं होगा, लेकिन जो नकरा वाली हैं जब उसमें अल दाखिल होगा तो वो फिर तीनों एराबी हालतें लेंगी। यानी जब हम स्टार्ट में उनके अल लगा देंगे तो उसके बाद वो एक जबर हालते राफी, नसब की हालत में एक सॉरी रफा की हालत में वो एक पेश लेगी, नसब की हालत में वो एक जबर लेगी, और जर की हालत में वो एक जेर लेगी। यानी जी पेश जबर जेर लेगी, इस तरीके से लेगी। जी बिल्कुल। अब हमारे पास हमने कितनी चीजें डिस्कस कर ली हैं। हमारे पास हो गया कि हमारा एक जो हरकात के साथ शो होंगे राब, वो हो गए, उनको हम कहेंगे ये हम इसको कह सकते हैं राब असली भी कह सकते हैं, या प्राइमरी एंडिंग भी कह सकते हैं, जो जेर जबर पेश या दो जबर दो पेश और दो जेर के साथ हमारे पास शो हो रहे हैं। तो ये इनको हम कहेंगे ये जो है असली जो इराब भी कह सकते हैं इनको। और दूसरा साउंड वाले इराब होते हैं, जो उनके जमा मुन्नस सालिम आ गया, मुसन्ना आ गया, और हमारे पास जमा मुज़क्कर सालिम आ गया। और इसके अलावा एक और मैंने कैटेगरीज बताई थी अस्मा के इराब में, अस्माल खमसा। ठीक है, अस्माल खमसा किसी को याद है? असादा थोड़ा सा हिंट दें। अस्माल खमसा जो मैंने आपको एक पूरा मैंने चार्ट भी उसका शेयर किया था। जी जी, वो और आखिर वाला, किसको याद है? भाई बहन वाला। हाँ हाँ बिल्कुल जी। हाँ बताएं। नहीं असादा वो मुझे नहीं आता, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इतना था कि कुछ वाव उसमें ऐड होती है, और वो आई डोंट नो, वो मुझे याद नहीं है वो, लेकिन सुसर इतना का मुझे याद नाम है। था मैम, जो एक सुसर का नाम था भाई का। जी आखिर आखुन। हाँ क्या था? अखुन था, फामुन था, और जी, और गुम था अबुन शायद। था, जू था। वो था जी मैम। ठीक है, पांच ये टोटल हमारे पास थे अस्माए खमसा। मैम आप एक एक दफा तो दोबारा शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे ना, ये हम देख लेंगे वो कहीं। जी ठीक। और फिर इनका जो इराब है, ये सिर्फ वैसे तो जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, वैसे तो हमारा पास इराब है, जैसे फामुन है, फामुन का मतलब होता है मुंह, ठीक है, माउथ जिसको हम कहते हैं। और जैसे वैसे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जुमले में, तो फिर ये फामुन और फमन और फामिन जो है ना, इसका इराब असल हरकत असली से ही शो हो रहा है, जो मतलब असली इराब है ना, जो फतहा तैन दम्मा तैन कसरा तैन उनसे ही शो हो रहा है। लेकिन जब मैंने कहा था जब ये मुजाफ बनते हैं, ठीक है, जब ये मुदाफ बनेंगे तो तब इनके जो है फिर इनका इराब जो होगा वो हरकत साउंड से शो होगा। फिर कहाँ से शो होगा? फिर इनका इराब जो है वो साउंड के साथ शो होगा। जैसे अब मैंने कह दिया फा हु, ठीक है, फू हु उसका मुंह, ठीक है, हमने इसको सुबह। यानी कि बना दिया। अब इसकी मीम जो है ना वो जो जब ये मुदाफ बनेंगे तो इसकी मीम जो है ना वो ड्रॉप हो जाएगी। तो इसकी मीम हमने यहाँ पे कह दिया उसका मुंह, ठीक है। तो फू हु, तो वाव के साथ इसका इराब शो हो रहा है, ठीक है, वाव के साथ। और असादा आगे इनको बोलते कौन? इनका नाम क्या जी, अस्माए? इनका नाम क्या आपने अभी क्या? अस्माए खमसा, अस्माए खमसा। खमसा, ये देखें, अस्माए खमसा, क्योंकि ये करवाए हुए हैं, सारा कुछ वही है जो आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। मैं वैसे एक दफा जस्ट रिवीजन के तौर पे मैं इसको ले रही थी। अच्छा, जी अब जी, ये फामन है, प्रैक्टिस थी। अब जी हाँ, फू हु उसका मुंह, अब फा हु। अब यहाँ पे बात बात हमें आता है कि ना हमने इसको यानी कि मंसूब हालत में इस्तेमाल करना है, तो फिर हम उसको अलिफ के साथ मंसूब इस हालत को शो करते हैं, फा हु, ठीक है। अब ये हमारी जो कंटेक्स्ट बताता है कि हमने फू के इस्तेमाल करना है या फा हु का करना है। अब ये आगे फा मिन, मतलब कि यहाँ पे हालत जर में इसका इस्तेमाल होगा फी ही, ठीक है।
اس کا منہ، اس کا مطلب تینوں کا ایک ہی جیسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو اسٹیٹس چینج ہوگا جب ہم اس کا کنٹیکس دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس کو حالت یہ ہوگی، ہمارے پاس حالت رف ہوگی، یہ حالت نصب ہوگی، اور یہ حالت جر ہوگی اس کی ہمارے پاس، یہ سمائی خمسہ کا ایک اسم ہے۔ باقی جب 5 اسما ہے، آخون، آبون، فامون، زو اور ہمون، ٹھیک ہے، ہمون، تو یہ 5 اسما ہے، ان کا اعراب جو ہے وہ ساؤنڈ سے شو ہوتا ہے جب ہم ان کو مضاف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز جو ہم نے پڑھ لی ہوئی ہے، ایک میں نے بتایا تھا، اب سسٹر شنیلا کسی اور اسٹوڈنٹ کو لیں۔ جی میم۔ اچھا، ہمارے جی رول نمبر آپ کائنڈلی لازمن لکھیں۔ زیبن آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں اور باقی سب اپنے مائکس میوٹ کر دیں۔ جی زیبن، اچھا چلے آپ آگے اپنا رول نمبر لازمن لکھیں تاکہ، اچھا میں نے آپ سے ایک جو کوشچن پوچھنا ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اسما جو ہیں وہ حالتیں ان کے مرفوع کس کس حالت میں آتے ہیں، ابھی جب تک جتنا ہم پڑھ چکے ہیں اس حساب سے، ٹھیک ہے۔ اسماء مرفوع آتے ہیں جب وہ فائل ہوں۔ نمبر 1، ہاں نمبر 1 چلے نمبر لکھ لیتے ہیں، فائل ہوں، حالت رف میں آتا ہے، فائل بھی حالت رف میں آتا ہے۔ نمبر 2، اور دوسرا ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا نا، اس میں دیکھیں۔ جی جب ہم مطلب اس میں جملہ اسمیہ میں استعمال کرتے ہیں فائل کو، جب وہ مرفوع ہوتا ہے۔ نہیں، اور اس کی کس حیثیت سے اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ تو ہر اسم جو ہوتا ہے نا، جو سب سے کسی کا ہمیں کانٹیکسٹ پتا نہیں نہ ہوتا، ہم ہر اسم کو حالت رف میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب جی کانٹیکسٹ پتا چل جاتا ہے تو پھر ہاں وہ تینوں حالتوں تو میں اس آتا کو ہے، خبر لیکن آپ بتائیں کی کس حیثیت، حالت میں۔ خبر چلیں کی خبر حالت ایک ہو ہوتی ہے۔ گیا، خبر کی حالت ہو گئی۔ نمبر 3 میں مرفوع کب ہوتا ہے؟ نمبر 3 آپ بتائیں، یہ جملہ اسمیہ کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں؟ ان میں خبر ایک ہے تو اس ایک کا پارٹ، مبتدا ہوتا ہے، ہاں تو اس مبتدا بھی میں کس حالت میں ہوتا ہے؟ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہ مبتدا بھی جو حالت رفع میں ہوتا ہے۔ جی مرفوع اسما جو ہے نا، یعنی کہ ہم ان کو کہیں گے مرفوع، کہاں کہاں مرفوع اسما استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھ لیا اعراب، یعنی اعراب کو پڑھ لیا کہ وہاں پہ مرفوع کب کب ہوتے ہیں، ان کا اصلی اعراب کیا ہوتا ہے، پھر دوسرے نمبر کا جو سیکنڈری اعراب جو ہے وہ ساؤنڈ سے شو ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا مرفوع اسما کون کون سے ہیں۔ اب ہم نے وہاں ان کا استعمال دیکھ لیا، تو بطور فائل جو ہے نا، جو فائل ہوگا وہ بھی حالت رفع میں ہوگا، خبر جو ہوگی وہ بھی حالت رفع میں ہوگی، مبتدا وہ بھی حالت رفع میں ہوگا، اور کیا ہوتا ہے، ہم نے ایک اور چیز بھی پڑھی تھی حالت رفع میں ہو۔ جب اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ تو اسما تو غیر منصرف ہو گئے، وہ تو حالت رفع اور نصب میں بھی ہوتے ہیں، مطلب وہ فتح بھی لیتے ہیں، لیکن اس کی مجھے بتائیں، اس کا اسٹیٹس بتائیں، مطلب کنڈیشن بتائیں کب وہ حالت رفع میں آئے گا۔ جب دیکھیں انا کے ساتھ ہم نے کیا استعمال کیا تھا، انا کے ساتھ ہم نے انا کے اس کا ساتھ اسم ہم جو نے تھا، منصوب اس کا وہ اسم تھا، اسم اس کا حالت نصب میں تھا، تو اس کی خبر کس حالت میں تھی، خبر مرفوع تھی۔ تو پھر ہم کہیں گے خبر انا، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی تک یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس اسما جو ہے نا وہ حالت رفع میں ہوں گے، اور آپ لوگوں نے اپنے رکھے ہیں، آپ نے یعنی کہ اس کو نوٹس میں رکھیں اس کو، کہ ہم نے ابھی تک یہ چیزیں پڑھی ہیں مرفوع اسما میں، جو استعمال اگر فائل ہوگا تو وہ حالت رفع میں ہوگا، خبر ہوگی تو وہ حالت رفع میں ہوگی، مبتدا بھی حالت رفع میں آئے گا، اور خبر انا بھی حالت رفع میں ہوگی، مرفوع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز اور مجھے پوچھنا ہے کہ میں نے بتایا تھا وہ ہمارا اسی وقت اسما کے ٹاپک میں ہو گیا تھا کہ جو مجرور جو ہوگا، جو اسما ہوں گے وہ کن حالتوں میں ہوں گے؟ ضرور جب ان سے پہلے حرف جر آئے گا، اساساً
ये जो आपने इन्ना की खबर लिखी है, इन्ना का तो इसम होता है हालते रफ में। है ऐसा वो ही है तो कुछ? जी, नहीं मेरा तो मुझे ये ख्याल है। नहीं नहीं मैम, इन्ना का इसम तो नसब में होता है। नसब आलिया, में ये होता हाँ है। मंसूब होता वो है जी। मुब्तदा हालते जो होता इन्ना है है का ना इसम फिर मुब्तदा। होता है। मंसूब और खबर मरफू होती है हम्म। जी, ऐसे ही। हम्म, जी। अच्छा ठीक है, फिर मैंने अपने माइंड में रिमाइंड किया, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो साजा, ये जो आपने लिखा फाइल और मुब्तदा, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे हमारे? यानी आपने फाइल की नहीं। कैटेगरी अलग लिखी और मुब्तदा की अलग, तो ये एक नहीं होगा? अच्छा। अच्छा मुझे ये बताएं, मुब्तदा और खबर किस जुमले में आते हैं? जुमला इस्मिया में। और फाइल? फाइल भी जुमला इस्मिया में, और उसमें भी आता फाइल है, जुमला इसमें फेलिए नहीं जुमले आता? में भी आता है। नहीं, फाइल जुमला इसमिया में आता है। मैम जुम्मा देखिए ना, फेलिया में मुब्तदा फाइल जो है वो जुमला फेलिया में आता है। फेल प्लस फाइल जो है ना वो जुमला फेलिया में आता है। और इसके अलावा आगे मफूल भी आएगा, वो अलग है। लेकिन अब हम जब ये जुमला इसमिया को पढ़ेंगे ना, तो फिर हो सकता है मुब्तदा हमारा हालत रफ में हो, खबर जो है वो पूरा एक जुमला फेलिया हो, या कोई जुमला इसमिया भी हो सकता है। अब हम उसमें हम कहेंगे जुमला इसमिया में आ जाएगा फाइल, लेकिन फिर वो उसका सारा चेंज होगा, वो तब भी वो होगा जो है ना हालत रफ में ही होगा। लेकिन वो फिर वो पूरा जुमला फेलिया जो होगा ना वो खबर बन जाएगा मुब्तदा के लिए। मतलब वो फिर कंडीशन और तरह की हो जाएगी ना। अभी आप जो हमने सिचुएशंस पढ़ी हैं जिस जिसमें हमारा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फाइल हमने पढ़ा है जुमला फेलिया में इस्तेमाल होगा। फेल प्लस फाइल, तो वो जुमला फेलिया बन जाएगा, ठीक है। जी। तो मुब्तदा में हमारा होगा मुब्तदा, यानी कि इब्तदा जिससे जुमले की होती है वो मुब्तदा, और उसके बारे में जो खबर दी जा रही है हम उसको कहेंगे कि ये खबर है, ठीक है। वो जुमला इसमिया के पार्ट्स हैं। और जो फेल प्लस फाइल जुमला फेलिया के पार्ट्स हैं। तो असासा, जो इसमिया जुमला में हमारा मुब्तदा है, अगर हम उसको फाइल नहीं बोलेंगे, जैसे जैद, नहीं, फाइल नहीं बोल सकते। ठीक है, नहीं, वो ठीक फाइल नहीं उसको बोलेंगे। ठीक ठीक है, क्लियर होगा। अच्छा, अब मैंने पूछा था, अब मजरूर जो है ना अस्मा पूरी अरबी ग्रामर में सिर्फ दो हालतों में होते हैं, और वो जी, बता दें ustad के एक लिए एक मसला मरकबे दूसरा भी। जारी है और एक मरकबे इजाफी में। हाँ, एक मुरकबे जारी में होता है, यानी कि इसको होता है मुजाफ इलैहि जब होता है, ठीक है। मुजाफ इलैहि जब होता है तो वो उसको हालत जर में आता है, क्योंकि हमारा मुजाफ इलैहि ऑलवेज जो है ना हालत जर में होता है। तो एक दूसरा जो है वो हरूफ जारा के बाद जो होगा इसमें के वो बाद हालत जर में होगा। ये दो बस कंडीशन है जहाँ पे पूरी अरबी में हमारे पास इसम जो होगा वो मजबूर हालत में आएगा। और मरफू में चार हमारे पास अभी कैटेगरीज आ गई हैं, कुछ और भी हैं लेकिन वो क्योंकि हमने पढ़ी नहीं हुई तो इसलिए हम उसको अभी नहीं करेंगे। अच्छा, मंसूब का भी बता दें, क्योंकि मंसूब भी एक जगह पे हुआ है, वो अभी एक ही हमने किया, तो वो मंसूब का भी इसमें इस्तेमाल होता मंसूब जब उससे पहले इन्ना आता है तो वो मंसूब हो जाता है। है। जी, माशाल्लाह बाराकल्ला। बिल्कुल, इसम जो इन्ना होगा, इसमें इन्ना वो हालत नसब में होता है, उसको हम कहेंगे मंसूब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आगे बाकी हम इंशाल्लाह और बाकी चीजें लाए पढ़ेंगे तो। नफी जिन्स की हमने खबर भी तो मंसूब की थी ना, लाए नफी जिन्स। सॉरी, माँ हिजाजिया की, माँ हिजाजिया, माँ हाजा बशरन, जो हमने किया था ना, तो वो हाँ, बशरन मुझे याद आ ये रही है बिल्कुल। एग्जाम्पल में। हाँ बिल्कुल, वो भी हो गया, हाँ ये भी आ गया बिल्कुल। और क्या किया था हालत नसब में हमने? लाए नफी जिन्स का हाँ, इसका। लाइन, हाँ लाइन नफी जिन्स का इसम भी था, वो भी हालत नसब में था बिल्कुल। तो ये चीजें आप लोगों ने इसको, ठीक है, हमारी इतनी रिवीजन होगी इराब के हवाले से, तो मैम इंशाल्लाह जो है। जी। असासा, मंसूब अभी हमने तीन की है ना? इन्ना का इसम, माँ जी। की खबर और लाए नफी जिन्स का इसम, ये तीन हो गए ना? जी जी बिल्कुल, ये हालत मैम नसब में होते हैं, मंसूब होते हैं जी। हाँ, बहुत माजरत मैम, हमें होस्ट बना दीजिएगा। डीसी हो गया था यहाँ से ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो बहुत माजरत। कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा, हमारा ये वाला हुआ, इसके अलावा एक और छोटी सी चीज थी, मैंने बताया था हमने जब अस्मा का भी टॉपिक किया था, तो मैंने उस वक्त बताया था अरबी में जो इराब के हवाले से ही, कि जो अरबी में जो अस्मा हम उसको 85% अस्मा जो होते हैं वो किस इराबी हालत में होती हैं, मतलब कि किन इराबी हालतों में होते हैं। ये जो है
आप ही हैं, चले आप भी करें ज़ेबुन कि किन एराबी हालतों में अरबी के अस्मा किन की परसेंटेज क्या है जो 3 एराबी हालतों में इस्तेमाल होते हैं, मतलब जो होते हैं रफा, नसब और जर तीनों हालतों में आते हैं। ये मतलब फतहा तैन, दम्मा तैन, कसरा तैन या फतहा दम्मा कसरा तकरीबन तीनों लेते हैं। और तकरीबन इसके नब्बे अलावा जो परसेंट और इसके अलावा जो है ममनू मिन सर्फ मतलब के गैर मुंसरिफ अस्मा वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब वो होते दो हालतों में इस्तेमाल है, ठीक है। लेकिन तीन हालत इराबी हालतों में इस्तेमाल होने वाले जो है ना वो अस्मा, आपने कहा 90% है। जी नहीं, मैंने तकरीबन पहले भी बताया 80 से अबव 85%। है सर, 80 से एट्टी अबव है। फाइव परसेंट अस्मा ऐसे हैं जो तीनों इराबी हालतों में इस्तेमाल होते हैं, मतलब तीनों इराबी हालतें लेती हैं, ठीक है। यानी कि फतहा, दम्मा, कसरा तीनों इराबी हालतें लेते हैं। 85% अस्मा ऐसे हैं और 13% अस्मा ऐसे हैं जो दो इराबी हालतें लेते हैं। मतलब इसमें आ जाते हैं शामिल आपके जमा मुन्नस सालिम, जमा मुजक्कर सालिम और मुसन्ना और जो है गैर मुसरिफ अस्मा, इस कैटेगरी में आ जाते हैं। 13% अस्मा ये हैं। और 2% अस्मा, अब कौन से रह गए हैं 2% अस्मा जो एक ही हालत में रहते हैं, वो मबनी अस्मा होते हैं। मबनी मबनी होते हैं जी। अच्छा, अब आप माइक क्लोज जेबुन आप करें। अब मैं एक और स्टूडेंट को करेंगे जो हमें मबनी अस्मा के बारे में जो अभी तक हमने पढ़ चुके हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। रोल नंबर जो है हमारे पास 72 है। आप अनम्यूट करें अपना माइक और मुझे बताएं कि मबनी अस्मा हमने अभी कुछ पढ़े हैं, अभी जो पढ़ चुके हैं हम उसके बारे में बताएं, वो कौन कौन सी हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मबनी मबनी अस्मा ये मबनी अस्मा जिसे हमने कहा पूरी अरबी ग्रामर 2% अस्मा ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही हालत में रहते हैं, मतलब जेर जबर पेश उसके ऊपर बस एक ही हालत रहती है। चाहे वो हम उसको मरफू की जगह पे इस्तेमाल, चाहे उनको हमें फाइल बनाना है, चाहे हमने उसको जो है ना वो कुछ भी बनाना है, यानी कि इसम इन्ना भी बनाना होगा क्योंकि वो हालत नसब में होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी उसी हालत में रहेंगी। या फिर जो है ना हमने उसको मुजाफ इलैहि पे भी लेके आना तो फिर भी वो अपनी एक ही हालत में रहेंगी, ठीक है। वो वो एक ही हालत लेते हैं, मबनी अस्मा होते हैं 2%। जी उस्ताद साहब ने बताए थे, अभी ज़हन में नहीं आ रहे उस्ताद साहब। मिस मैं बता चले दूं। आप मैम चले ईशा आप को ले दूसरे 90। ईशा जो है वो आप बताएं, ठीक अस्सलाम है। रोल वालेकुम नंबर पहले वरहमतुल्लाहि लिखा करें। वबरकातुहू। 90 वालेकुम है मैम। अस्सलाम। जी जी मिस, पढ़ा था मबनी अस्मा के बारे में हमने। जो वो उनकी सिर्फ 2% है मबनी अस्मा। जी। और ये ना हालत रफ़ा और हालत नसब और हालत जड़ में इनकी हरकत चेंज नहीं होती, एक ही रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाजा, वो भी तीनों हालतों में हाँ, तो सेम उनके रहता है। नामों से बताएं आपके अस्मा इशारा, वाहिद और जमा के अस्मा अस्मा इशारा इशारा जो है वो। जी जी। और अस्मा इशारा अरबी नाम। में अल्लज़ी, जी सर, अल्लती। रोल नंबर 70 को आप माइक म्यूट कर दें अपना। अभी इनको बता रहे हैं, हाँ आप बताएं। जी एक मिस, अस्मा इशारा हो गए। अस्मा इशारा अल्लज़ी, अल्लती हाँ और हाँ, इसलिए हाजा ये कैटेगरी हमारे और पास। हाँ, जी मिस। वाहिद अब इस तरह से कह रहे हैं, वाहिद और जमा के अस्मा इशारा हमारे पास मबनी आ गई। नंबर 1 जी कैटेगरी मिस। होगी अस्मा इशारा मबनी, हम लिख लेते हैं, ठीक है। मबनी जी मिस। अस्मा हो गए। वाहिद और जुमा के। नंबर 1 आ गए हमारे पास अस्मा इशारा। और ये वाहिद और जमा के आप लिखने की जगह नहीं होगी तो आप खुद ही समझ जाए, ठीक है। वाहिद और बाकी मुसन्ना के जो होते हैं वो मबनी नहीं होते, वो मोड़ब होते हैं। अब नंबर 1 कैटेगरी आ गई, और नंबर 2 कैटेगरी जो अभी तक हमने पढ़ी है मबनी अस्मा की, वो कौन सी है। नंबर 2 कैटेगरी मम्मी अस्मा की मिस, मिस माइंड में नहीं मतलब हाजा हाउला अस्मा यही है ना मिस। अस्मा जी, ये तो अस्मा इशारा होगी ना। अब नंबर जी 2 मिस। जमायर, अस्मा अस्मा जमाइर जमायर में ओके, जी। जमाइर में आ गया। मिस हुआ हुमा हम, क्या इनको हम लेंगे? हाँ हुआ है, हाँ बिल्कुल, अस्मा जमायर हुआ जो हो गए, हुमा। ठीक है। जी मिस। ये हुआ इसमें हुमा। मरफू मुनफसिल, अच्छा इसमें तमाम तरह के जमायर 5 जी हमारे पास गर्दानियां जमायर की, ठीक है। 5 कौन कौन सी जमायर की 5 तरह की गर्दानियां हमारे पास।
नाम उनके बताएंगे आप? थोड़ा हिंट दे दे मिस, शायद फिर हो जाए। थोड़ा मैं जैसे अभी एलियन मरफू खा रही हूँ ना। मुनफसिल ज़मायर हो गए, मरफू जी मुनफसिल ज़मायर हो गए, हुआ या हुमा, ये सारे हो गए, ये हमारे पास जी जी। मरफू मुनफसिल ज़मायर हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से ज़मायर होते हैं हम सब अंता, पढ़ चुके हैं अंतुमा, वैसे। अंतुम, अंती, अंतुमा, ये तो अंतुन्ना। ये हो गया, ये मरफू जी। मुनफसिल ज़मायर में आ गया। अब दूसरी क्या कौन सी है? और ज़मायर की और वो कौन जो सी कैटेगरी है? मंसूब, ये तो मंसूब और मजरूर मिस हाँ, उसमें। मंसूब मजरूर जी जी जी। मुत्तसिल हु ज़मायर हो गए, हु दूसरी जी, हु कैटेगरी है। हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। हाँ, ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया जी। हमारे पास। अब ये का, अब हुमा। और एक और हमने पढ़ी थी, एक और हमने पढ़ा है, वो भी जितने भी जमायर होंगे। अब मरफू मुत्तसिल जमायर जो हम एज अ फाइल इस्तेमाल करते हैं, ता ती तुमा, ठीक है, ये भी ऐसे ही जी रहेंगे। मिस, ये मैंने असल में ना ये रिवाइज नहीं किया, ये वाला पार्ट मेरा थोड़ा मिसिंग है, इस पे मैं वर्क ऑन कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह फिर हाँ चलिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह टाइम हो आप ये जाएगा। अब इतनी जो है, अभी आप हमारे साथ ही रहें, ठीक है। अब हमने एक कर लिया अस्माए इशारा वाहिद और जमा के, और इसमें जी जमायर जो है वो भी हमारे पास आगे जी जो हमारे पास मबनी की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। जी और इसके अलावा हमने एक और कैटेगरी पढ़ी थी, अस्माए मौसूला। जी जी। अस्माए अस्माए मौसूला मौसूला भी में। हम पढ़ चुके हैं ना। अस्माए मौसूला जो है वो भी हमारे पास मबनी की कैटेगरी में आते हैं, अस्माए मौसूला। और ये भी वाहिद और जमा के जो होंगे वो मबनी हैं, और जो मुसन्ना के हैं वो मोरब में आते हैं। अब इसमें जो है अस्माए मौसूला में जैसे अल्लाह दी, अल्लादीना, ठीक है, अल्लाह ती, ये जो है हमारे पास हमारे आगे हमारे पास मबनी मबनी। अस्मा आगे अस्माई मसलू। और नंबर 4 भी हमने एक और कैटेगरी भी मबनी अस्मा की पढ़ी है, वो भी बता दें अगर आ रही, अगर कुछ है याद तो। नहीं मिस, मेरे माइंड में नहीं है इसके उसमें। अलावा हमने अस्माए इस्तफहाम पढ़े थे, अस्माए इस्तफहाम पढ़े थे, जी अस्माए इस्तफहाम। अब इसमें अस्माए इस्तफहाम में एक जो इस्तफहाम था ना वो मोरब था, बाकी सारे के सारे अस्माए इस्तफहाम वो मबनी है। वो कौन सा मोरब था? अस्माए अय्यू। इस्तिफाम तो काफी सारे थे मिस, हाँ, माँ हो अय्युन, अय्युन का जो था ना, अय्युन, अय्यन और अय्या जो है ना, अय्यन, ये जो है ना एक इसमें इस्तिफाम ऐसा है जो कि तीनों हालतों में इस्तेमाल होता है। बाकी जो है ना तमाम अस्मा इस्तिफाम होंगे वो मबनी होंगे, ठीक है। अब जी ये और कुछ कैटेगरीज और भी हैं, लेकिन आपने जितनी अभी पढ़ी हैं हम उस पे रहेंगे, ठीक है। जी। अच्छा, ये साथ साथ ताकि आप लोगों को ये टर्म्स आ जाएं, पता चल जाए कि ये टर्म्स हमारे हमने अपनी काम करते वक्त इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कि मबनी कौन से हैं, मोरब कौन से हैं, थ्री डी नाउन्स कौन से हैं, टू डी नाउन्स कौन से हैं, इराब जिनसे जो है ना जिन पे फतह तैन या जेर जबर पेश आएगी वो कौन से हैं, या फिर जिनका इराब जो है ना वो साउंड से शो होगा वो कौन से हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आप लोगों को समझ आई होगी, इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ तो आप लोगों को ज्यादातर तो आता ही होगा। असाचा, ये जो आज आपने अभी मबनी की कैटेगरी लिखवाई है, इस जमायर अस्मा वाली, वो मुझे समझ हम्म, नहीं लगी कि वो हमने उसमें मबनी किस कैटेगरी को डाला है जमायर की। मबनी में जैसे हुआ होगा, हिया हो गया। अब ये जो है ना, ये हुआ हो गया, हिया हो गया, अगर तो ये आगे आपके पास एज अ फाइल आ रहे हैं तब भी ये हुआ हिया रहेंगे। अगर एज अ मफूल इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी हिया ही रहेंगे। हाँ अगर एज, हाँ ठीक हाँ है, हाँ। ये 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 सारे जमायर, क्यों, 14 के 14 जमायर जो हमारे होंगे, ये जो एक तो अच्छा, ने 4 कैटेगरी बताई हैं अभी। हाँ तो अभी हमने यही पढ़ी है, क्यों है और भी, अभी और भी हैं, लेकिन हमने क्योंकि पढ़ी 4 है तो इसलिए हम इसी को डिस्कस करेंगे। अच्छा असातिज़ा, वो ज़मायर वाली कैटेगरी की जो भी आपने बात कही थी ना, वो भी बता दें, वो भी एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ये मैंने कहा था, यही कहा था कि आप जैसे हमने कहा हुआ, हुमा, हुन्ना, या फिर जो हुम कहा, जो भी हमने कोई भी ज़मीर ले ली हमने, ठीक है, हिया ले ली। अब आपने हिया, हमने कहा हिया मुअल्लिमातुन, ये कौन सा जुमला है? ये कौन सा जुमला है? जुमला इसमें है। जिसमें जुमला इसमें है।
तो जुमला इस्मिया में ये क्या है, मुब्तदा है या जी मुअल्ली मातूफ क्या है? खबर है। तो मुब्तदा उसकी हमारे पास क्या एंडिंग है, मतलब उसका क्या हाल है, किस हालत में होना चाहिए? हालते रफ में। तो ये हिया हालत रफ में है। साजा हिया के जी ऊपर तो हालते जबर रफ है, में आप है। देखिए हिया की एंडिंग, जी जी हिया जी की जी एंडिंग तो जबर के साथ है। जी जी ठीक है, हम इस लिहाज से इनको इनकी एंडिंग्स के लिहाज से देखेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये मबनी है, क्योंकि ये अब मुब्तदा के लिहाज से ये दम्मा नहीं रहेगा, ये इसी का ये ऐसे की ऐसी रहेगा। ठीक है। नहीं साजा, आपने एक बोला था ना अभी कि जमायर भी हमारे पास 5 कैटेगरीज में आते हैं, आप वो मेंशन करने हाँ, लगी थी तो फिर आप रुक गई थी, कोई और अच्छा सवाल ले वो लिया था ये आपने। पांच पांच मैंने उनकी गर्दानें आप लोगों को बताई हुई हैं। एक मरफू मुनफसिल जमायर है, एक मरफू मुत्तसिल जमायर है। ये दो तरह की हमारी मरफू में आ गई। एक मंसूब मुत्तसिल जमायर हमने पढ़े, मंसूब मुनफसिल जमायर भी है, लेकिन वो अभी हमने नहीं पढ़े, इसलिए मैं अभी नहीं करूंगी, क्योंकि हम मफूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेसन होगा वो मफूल के बारे में ही होगा, तो फिर हम मंसूब मुनफसिल जमायर भी देख लेंगे। ठीक है। अभी हमने जो पढ़े हैं वो 4 तरह के हमने ज़माइर पढ़ लिए हैं, 4 तरह की ज़माइर की जो पूरी गर्दानें हैं। ठीक है। 14 ज़माइर हैं, तो फिर तमाम कैटेगरीज में 14 ज़माइर हैं। अब हमने पढ़ लिया मजरूर मुत्तसिल ज़माइर भी पढ़ लिया, और जो है मंसूब ज़माइर भी पढ़ लिए। मंसूब मुत्तसिल ज़माइर, मंसूब मुत्तसिल ज़माइर और मजरूर मुत्तसिल ज़माइर एक ही तरह के होते हैं। और जो मजरूर में होते हैं वो सिर्फ मुत्तसिल ज़माइर होते हैं, मजरूर के मुनफसिल ज़माइर कोई नहीं होते, उनकी कोई और गर्दान अलहदा से नहीं है। ठीक है, लेकिन मंसूब मुनफसिल ज़माइर की अलहदा से एक गर्दान है, वो इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे। मिस मेरा ये एक चार क्वेश्चन जो है। है बन गए आपके पास जी। मिस ये मुत्तसिल आप ऐड करी हैं, मैंने शायद इसका लेक्चर नहीं लिया होगा। ये मुत्तसिल जमायर की, मतलब ये जो वर्ड मुत्तसिल है इसकी नहीं समझ आ रही, ये साथ आप क्यों लगा मुत्तसिल रही हैं? होता है अगर अटैच्ड, अटैच्ड मुत्तसिल होता है मुनफसिल क्या होता है? मुनफसिल होता है डिटैच्ड प्रोनाउंस। मुनफसिल ज़माइर होता है डिटैच्ड प्रोनाउंस, और मुनफसिल ज़माइर होता है अटैच्ड प्रोनाउंस। अभी मैंने, अगर आप लगता है मिनहाजुल इल्म ग्रुप में आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ है मैं उसको बड़ी मेहनत से तैयार करती हूँ आपकी हेल्प के लिए, कि जी उसमें मिस मैंने एक पूरी गर्दान तैयार की हुई है। ये लेक्चर्स में सर ने क्लियर किया है इसके बारे में, मुत्तसिल और मुनफसिल के बारे सर में ने भी, हाँ प्रीवियस? सर ने भी क्लियर किया होगा, और मैंने मिनहाजुल इल्म ग्रुप में उसका पूरा जो है ना बना के डाला है। किसने मैम वो आपने देखा है? पूरा दोनों डाले में, मैंने उसको लिख भी लिया अपने पास जी डाले में। हाँ साजा वो मैं भी लिख। किसने, हाँ देखिए उसमें। अब मुझे वो बताएं, आपने जिसने आती है वो मुझे, अब उसके बारे में मरफू मुत्तसिल जमायर का, अब आप में से कौन बताएगा, हैंड रेज करें। मरफू मुत्तसिल जमायर मतलब अटैच्ड प्रोनाउंस, एज अ फाइल इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। तो इनके जुमला फेलिया में, फेल के अंदर अटैच्ड प्रोनाउंस होते हैं। तो वो मैम अब कौन इसको 72 बताएगा? ग्राफिया और 72 रोल 72। नंबर है। अगर जिसने चलो सर का लेक्चर भी सुना, फिर मैंने अलहदा से अभी उसको मिनहाजुल इल्म ग्रुप में भी डाला, पूरी की पूरी बना के इसको ना बड़ी डिटेल के साथ मैंने उसको बनाया है। तो अब बताएं रोल नंबर 72। जी साजा गिरदान पढ़ लें, उसके साथ साथ बताते रहें ऐसे। जी वो कर लें। सही। ज़राबा में हुआ है, ज़राबा में हुआ है, और ज़राबा में अलिफ है, और ज़राबू में वाव है, और ज़राबत में हिया है, ज़राबता में अलिफ है, और ज़रब में नून है, और ज़रबता में ता है, और ज़रबतुमा में तुमा है, ज़रबतुम में तुम है, ज़रबती में ती है, ज़रबतुमा में तुमा है, ज़रबतुन्ना में तुन्ना है, ज़रबतु में तू है, ज़रबना में ना है। ये मरफू मुत्तसिल साजा। जी। इसके साथ मैंने पूरा डिटेल के साथ कुछ और भी बताया था, आपने देखा है मिनहाजुल इल्म ग्रुप में? मैम मैंने वो लिखा हुआ भी है और याद भी किया था। आप बताऊं बताएं, मैं? फिर आप मुझे बताएं। आप यहाँ से मैंने पहले 6 सीखे लिखे हैं, आप इसको एक्सप्लेन करें, मैंने किस तरह से बताया वो उस तरीके से बताएं। मैम आपने बताया था सबसे पहले जमीर को पहचाने, अगर मुनफसिल है या मुत्तसिल है। अगर जमीर मुत्तसिल है तो दो बातें हो सकती हैं, मंसूब मुत्तसिल भी हो सकती है और मजरूर मुत्तसिल भी हो सकती है।
अब जमीर से मा कबल अल्फाज को पहचान, यानी उससे पहले वाले अल्फाज को पहचाने। अगर इसम है तो जमीर मुजाफ इलैह के तौर पर है। मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है, लिहाजा जमीर मजरूर मुत्तसिल होगी। और नंबर 2 में आपने बताया था मा कबल अगर हुर्फ जार है तो जमीर मजरूर के तौर पर होगी, लिहाजा जमीर मजरूर मुत्तसिल होगी। फिर आपने 3 में बताया था मा कबल अगर फेल है तो जमीर मफूल के तौर पर है। मफूल हमेशा फाइल मंसूब होता है। फाइल नहीं, वो मंसूब होता है, लेकिन अभी फाइल के साथ अगर फेल उससे पहले। हमारे में अगर आपने बताया था अगर जमीर मरफू मुत्तसिल है तो, यानी कि अब जमीर से मा कबल अल्फाज को पहचाने। मा कबल अगर हम में इसम है तो जमीर ताकीद के लिए भी है। मा कबल अगर फेल है तो जमीर फाइल के तौर पर भी है। और जी, मा कबल के अब फेल ये नहीं देखें। तो अब मुब्तदा होगा। हाँ, अब ये इस मुझे ये जो मैंने 6 सीगे लिखे हैं, अब इसके हवाले से मुझे बता दें कि यहाँ पे इनके साथ मुत्तसिल ज़मायर कौन से हैं और जो फाइल बन रहे हैं इनके साथ ना। अब ज़ाराबा में कौन सा फाइल है ज़रा और उसमें बाबा वो ज़मीर कौन। होगा, हुआ हुआ। हुआ वो मरफू मुनफसिल ज़मीर है, ठीक है। अब इसके अंदर जी, जो ज़मीर है वो क्या, इसको हम क्या ज़मीर, कौन सी ज़मीर कहेंगे जो इसके अंदर है कि हुआ की ज़मीर है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही हमें, कुछ उसकी कोई निशानी नहीं ना हमारे पास यहाँ पे, तो फिर उसको मैम क्या इसकी कहेंगे। निशानी, इसकी निशानी से ज़राबा के अंदर छुपी भी होती है ना, ज़राबा। ज़मीर मुस्ततिर होती है। हाँ, जमीन मुत्तसिल होती है, मुत्तसिल होती है, नहीं मुनफसिल होती है मैम। मुस्ततिर। मुस्ततिर इसको कहते हैं, ज़मीर मुस्ततिर है, ठीक है, मुस्ततिर। हाँ सही है मैम, मुत्तसिल, सही। यहाँ पे बोला ये था। ज़मीर मुस्ततिर है ज़ाराबा के अंदर, ठीक है। हुआ जी की ज़मीर मुस्ततिर है ज़ाराबा के अंदर, और अब या ज़ाराबा यहाँ पे मुस्ततिर, यहाँ पे अलिफ की नजर आ रही है, जो एजा ये मुत्तसिल, हम इसको मैम, कहेंगे यहाँ ये पे हुमा मुत्तसिल है, ज़मीर है, हुमा है मैम, ठीक यहाँ है। पे हुमा है। और यहाँ पे ज़ाराबू के अंदर हमें जो वाव है उससे हम कह रहे हैं ये इसके अंदर जो वाव है हुमा है, ये इसकी मुत्तसिल ज़मीर है, ठीक है। मुत्तसिल, वाव। वाओ। और इसमें ता अब है, ज़राबत के अंदर मतलब यहाँ पे भी ता है, मुस्ततिर ता। ज़मीर है। अब ये जी, ता जो है, ये ता किस चीज का है, ताए तानीस है, मुत्तसिल, इसको क्या कहते हैं, ताए, ये ताए तानी। मुन्नस की अलामत है, ताए तानीस हाँ है। जी, और इसके अंदर भी जो ज़मीर है वो मुस्ततिर है, मतलब छुपी हुई है, वो हिया की जी मैम। ज़मीर है वो इसके अंदर छुपी। अब लेकिन अब ये नहीं, अब इसके अंदर ज़मीर मुस्ततिर है, ये पूरा जुमला फेल है। आप देखें, सिर्फ ये फेल नहीं है ज़ाराबा या फिर ज़ाराबत, ये एक फेल नहीं है, ये फेल प्लस फाइल है, ठीक है। इसे आप हाँ इसका जी मैम। तर्जुमा क्या करेंगे, उसने मारा, उस मुजक्कर ने मारा, और यहाँ पे हम कहेंगे उस मुअन्नस ने हुमा, मारा, हुमा। ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये पूरा एक जुमला फेलिया है, फेल प्लस फाइल। अब यहाँ पे इन 3 सीगों में आपने देखा, यहाँ पे ये 2 सीगे थे, अलिफ और जहाँ पे वाव है, इनका फाइल के तौर पे इनकी मुत्तसिल ये जमीर हम इसको कहेंगे ये मुत्तसिल जमीर है, ठीक है। अटैच्ड प्रोनाउन है, ये अलिफ जो लगा इसके साथ जो वाव लगा, ठीक है। आगे अब ज़रा बता है, तो इसके साथ जो ता है इसका वो तो ताई तानीस का है, लेकिन इसके साथ भी अलिफ क्या ज़मीर है, ये इसकी फाइल की ज़मीर है, ठीक है, मुत्तसिल ज़मीर अटैच प्रोनाउन है। और इसे अब ज़रब ना, ठीक है, ये नून है, अब ये हमारे पास इसका जमा मुअन्नस की निशानी है, जमा मुअन्नस गायब की है, नूने निस्वा भी इसको कहते हैं। तो जी यहाँ पे ही अटैच प्रोनाउन हमने कहा ना है, ठीक है। आप एक दफा फिर दोबारा से इसको मरफू, मैंने पिन भी किए थे, मरफू मुत्तसिल ज़माइर, ठीक है। उसमें 2 ज़मीरें जो है वो मुस्ततिर हैं, मतलब पोशीदा हैं, बाकी सब के साथ कोई ना कोई फाइल के तौर पे निशान है, अलिफ वाओ नून ता तुमा तुम, ठीक है, ती तुमा तुन्ना, और ना और तू और ना, ठीक है, तू और ना, ये हमारे पास ये इनको कहेंगे मरफू मुत्तसिल ज़माइर, एज अ फाइल इस्तेमाल होते हैं, फेल के साथ अटैच होके आते हैं, ठीक है। असाजा, जी इसका जी। मतलब है कि जो हमारा पहला और चौथा सीगा है, आपने मेंशन भी किया हुआ है, सिर्फ उसी को हम मुस्तरीर बोलेंगे क्योंकि उसमें कोई हमें अलामत नजर नहीं आ रही है, ऐसे जी ही है। बिल्कुल। और जो जी बाकी वाले बिल्कुल। सीगे होंगे उसके अंदर जो हमें अलिफ वाओ ता ताए तानीस वगैरह नजर आ रहा है, उनको हम बोलेंगे मरफू मुत्सिल जमायर। जी, ताए तानीस जो होता है ना वो तानीस मतलब मुअन्नस की अलामत होता है,
لیکن اس کے اندر بھی جو ضمیر جو فاعل ہے مستتر ہے، ٹھیک ہے. ہم کیونکہ پہلا اور چوتھا سیگا میں ہے. اس کو بھی بولیں گے، یعنی 14 سیغوں میں 14 مستتر ضمائر ہیں، ایسے بولیں گے؟ نہیں، پہلا اور چوتھا سیگا جو ہے، فرسٹ اور جو فورتھ والا سیگا ہے، جمع واحد مذکر غائب کا اور واحد مؤنث غائب کے جو سیگے ہیں، ان کے اندر فاعل جو ہے یہ مستتر ہے، ٹھیک ہے. جی 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 جی. اور جو ان کے باقی اندر والے ہیں فاعل ہے ان کو ہم نے وہ حرفوں سے پہچاننا ہے، حرف جو ہیں وہ جی ہیں ضمائر بیسیکلی. جی وہی ضمائر ہیں، ان کو ہم مرفوع متصل ضمائر کہتے ہیں. اور جب ہم کہیں گے کہ جی اس میں، جیسے آپ نے لاسٹ کلاس میں بھی کوشچن کیا کہ اس میں کیا ہڈن ہے، تو پھر ہم نے جو ہڈن والا بتایا وہ ہم نے بیسیکلی منفصل ضمائر ایکسپلین کرنے کے لیے بتائے ہیں، بٹ ان فیکٹ اس کے جی اندر بالکل، متصل ضمائر ہیں. یعنی کہ وہ ہم نے نشانی کے طور پہ بتایا کہ اگر یہاں پہ یعنی کہ زارا با ہے، اب خالی اس کے اندر ضمیر مستتر ہے اور وہ ہوا کی ضمیر ہے، مطلب کہ یہ ہوا کے مطابق ہے، یعنی جیسے ہوا کا جی مطلب وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم ہوا کو نکال کے شروع میں لے آئیں گے تو وہ ایک جملہ اسمیہ بن جائے گا، لیکن ہمیں یہاں پہ چاہیے جملہ فعلیہ. جملہ اب زارا با کا خالی آپ زارا با کو دیکھ لیں تو پھر یہاں پہ ہم کہیں گے اس کا فاعل جو ہے وہ ہڈن ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہڈن ہے اور وہ جو کہ ہوا کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح زارا بت جو ہے اس میں بھی ہم کہیں گے اس کے اندر فاعل ہڈن ہے، وہ جو ہڈن فاعل اس کے اندر ہے وہ ہیا کی ضمیر ہے اور اس کی نشانی کے طور پہ کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں لکھتے علیحدہ سے. اس کے جب ہم مرفوع متصل ضمائر کی ایک پورے چارٹ بناتے ہیں تو پھر ہم ضمیر مستتر لکھ دیتے ہیں پہلے اور چوتھے سیگے کی، اور ٹھیک ہے. باقی اساتذہ تمام سیگے یہ جو 14 سیگے ہیں اس میں سے 4 سیگے تا پہ ختم ہو رہے ہیں، تو اس میں جو تانیث ہوگا وہ کون سے والا ہوگا چاروں میں سے؟ کون سے سیگے ہیں جو تا پہ ختم ہو رہے ہیں؟ ایک تو ہو گیا دارا باتا. ایک زارا بت ہو گیا، زارا بتا، زارا بتی، زارا بتو. اچھا یہاں پہ زیر زبر پیش کی. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ زارا بت وہ تائے تانیث، وہ ساکن آ کے ساتھ جو آتا ہے وہ تائے تانیث کی علامت ہو گیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک آگے ہو گیا. دوسرا آ گیا دارا باتا. اب یہاں پہ بھی کیونکہ دو مؤنث ہے، جو تا ہے وہ تائے تانیث ہو گیا، اس کے ساتھ الف جو ہے، وہ جو الف ہے اس کے اینڈ پہ لگا ہوا ہے وہ اس کے فائل کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. کہ مطلب دو ہیں یہاں پہ، فائل نہیں جو ہے اساتذہ، وہ دو ہیں. نہیں نہیں اساتذہ، الف والا نہیں، یہ جو تم والا ہے، زارا بتا، تم مذکر تم، وہی کہتے ہیں. اچھا وہ زارا بت وہ ضرب تم ہوگا نا. ضرب، جی ضربتو، ضربتا، ضربتی، جی یہ والے. یہ آپ دیکھیں ضرب تم جو ہے نا اس میں آ گیا تم، یہ تم کی جو ضمیر ہے نا یہ اس کو ہم کہیں گے متصل ضمیر ہے. اور یہ مؤنث جیسے انتم ہے نا، اب مرفوع ان کو ہم نے جو مرفوع منفصل ضمائر ہے نا ان سے ہم نے مرفوع متصل ضمائر کو پہچان لینا ہے، ٹھیک ہے. نہیں اس لیے ان اساتذہ، کو بار بار اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. نہیں اساتذہ یہ والا نہیں جو خالی تے ہے. ضرب تو یعنی میں نے مارا، ضرب تا تو نے مارا، ضرب تی تو نے مارا مونس نے. یہ 3 تے جو ہے نا میں ان کی بات کر رہی ہوں. اچھا یہ ہو گیا، آپ دیکھ لیں خیری ضرب تا جی ضربتی، یہ کہہ رہی ہیں جی آپ، جی، یہ ٹھیک ہے. تینوں تا ہے اب نا، اس اور میں ایک چوتھا تا بھی ہے، وہ ضربت ضربت. وہ آپ کہہ رہے ہیں. جی اب اب ان یہ، تینوں میں ڈفرنس آپ کو میں جی آپ یہ کو 4 بتاتی تا ہوں ہو گیا. خیر. اچھا یہاں پہ آپ نے زارا بت جہاں پہ کوئی بھی فعل کے ساتھ جیسے اسامیات لکھا ہو سکتا ہے، اشاری بت لکھا ہو سکتا ہے، تو سب کے ساتھ یہ تا جو ہے نا ساکن آئے گا. تو یہ تا جب ساکن آ گیا تو واحد مونس غائب کی علامت ہے، ٹھیک ہے. واحد جی جی مونس غائب آ گیا مطلب ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس تائے میں نے اس کو کہا جو تا ساکن ہے وہ تائے تانیث کہلاتا ہے، مطلب مونس کا تا کہلاتا ہے. مطلب ٹھیک اس ہے. میں ہمارے پاس آ گیا کہ یہاں پہ مونس ہے، یہ سیگا جو ہے مونس کا سیگا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی ہمارے پاس دورہ با جو شروع میں آ گیا تو مطلب ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا فیل، ہو گیا فیل کے طور پہ آ گیا. یہاں پہ فیل تو ہے، اب دارا با بھی فیل ہے، وہ مذکر کے لیے ہے. اب دارا بت آیا تو ہم نے کہا کیونکہ اس کے تائے تانیث ہے تو یہ مونس کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. دونوں واحد غائب کی ضمیریں ہیں. اور ادارہ با واحد غائب مذکر ہے اور زارا بت واحد غائب مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تا جو ہے نا یہ اس کی تانیث کی ہی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پہ واحد مؤنث ہے. اور یہ والا زارا تو جو ہے یہ واحد متکلم ہے، یہاں پہ تا کے اوپر دمہ ہے، ٹھیک ہے.
اور جہاں پہ بھی دمہ آپ جب کوئی سی بھی آپ فعل ماضی کی گردان بنائے گی، کوئی سی بھی فعل ماضی کی گردان بنائے گی، تو اس کا جو یہ والا صیغہ ہوگا واحد متکلم کا ہوگا، اس کے تا کے اوپر دمہ ہوگا، تو پھر یہ ہم کہیں گے واحد متکلم کا سائن ہے تا پیش تو جو ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کی ضمیر کے علیحدہ متصل ضمیروں میں لکھا، جب اس کو میں نے اس کو علیحدہ کر کے لکھا تو میں نے کہا تاپش جو تو ہے یہ واحد متکلم کا اس کا ٹھیک ہے فائل ہے اس کا، اور یہاں پہ تا زبر جو زبر کے ساتھ تا آ گیا، یہ جو ہو گیا ہمارے پاس جیسے انتا تھا، ٹھیک ہے، انتا تھا تو یہ یہاں پہ ہم نے کہا یہ جو تو ہے یہ انا کے مقابل میں ہے، مطلب جیسے انا کا مطلب میں ہوتا ہے تو تو کا مطلب بھی میں ہوگا۔ ہم نے یعنی کہ منفصل ضمیروں سے متصل ضمیروں کو پہچاننا ہے۔ اب انتا تھا تو پھر انتا کے ہم نے اس کے اوپر تا کے اوپر زبر تھی، وہ حاضر مذکر کی نشانی تھی، حاضر مذکر کی واحد حاضر مذکر کا نشانی تھی انتا، تو اس کے انتا سے ہم نے تا لیا تو یہ ہم نے اس کے ساتھ متصل کر دیا فعل کے ساتھ، تو یہ کہیں گے جو ہے فاعل جو ہے یہ متصل ہے تا زبر کی صورت میں۔ اور انتی اب کسرہ ہے، اب ٹھیک ہے، انتی اس کے لیے تو مونس ہے نا استعمال ہوتا ہے، تو مونس حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے تی، انتی، تو ہم نے کہا اس کے جو اینڈ والا تی تھا ہم نے اس کے تی کو یہاں پہ فعل کے ساتھ لگا دیا، ضرب تی بن گیا، تو یہ واحد مونس حاضر کی نشانی ہو گیا، جو کسرہ ہے تا کے نیچے کسرہ ہے تو واحد مونس تا کے اوپر فتح ہے تو واحد مذکر، ٹھیک ہے، حاضر کے یہ دونوں حاضر کے سیگے، اور یہ متکلم کا سیگا اگر تا کے اوپر دمہ ہے وہ انا کے بالمقابل ہوتا ہے، اور یہاں پہ تائے تانیث ہے جو ساکن ہوتی ہے تو یہ مؤنث کی نشانی ہے، یہ مذکر غائب مؤنث کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا سر۔ یعنی یہ میم جی آپ ہم کو کیونکہ یہ عربی گرامر کے رولز ہیں، یہ آپ کو اسی طرح سے یاد رکھنے ہوں گے۔ آپ کہیں کہ اس کے پیچھے لاجک میں کوئی ڈھونڈ لوں یا کچھ ایسا کر لوں تو وہ تھوڑے ہم اس کو نشانیوں سے یاد، یہ مرفوع منفصل ضمیر ہے تو ہم اس سے ملتا جلتا مرفوع متصل ضمیر کے تھوڑی سی اینڈنگ لے کے تو اس طرح سے بنتا ہے۔ اب جیسے ہم نے عربی میں تو نہیں، ہم جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ہم نے لسن کے بعد ٹو کی ہی پریپوزیشن استعمال کرنی ہے، ہم کہتے ہیں نا لسن ٹو ہی لکھنا ہے، ہم لسن کے بعد آپ کو یا گو ٹو ہی لکھنا ہے۔ اب ہم کیوں نہیں لکھ سکتے، ہم کہیں گے ہم نے گو ان لکھ دیں، اب وہ کہیں گے نہیں یہ تو انگلش کا رول ہے، آپ نے کیوں گو ان، اب کسی چیز کے اندر جانا ہو کہ ہم کہیں گے کہ گو ان دا گارڈن ہم لکھ دیں، لیکن ہم کہیں گے نہیں یہ عربی کا یہ انگلش کا اصول ہے کہ اس کے بعد پریپوزیشن یہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو جی اسی ٹھیک طرح ہے سے یہ سر۔ عربی کے بھی قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان قاعدوں کو آپ نے جو ہے نا وہ اسی طرح سے فالو کرنا ہے، ایز اے جیسے آپ نے کوئی فارمولا یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یہ ہے کہ ہم انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے جیسے انتا تھا تو ہم نے اس کا جب متصل کیا تو اس کا صرف تا رہ گیا فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ چلو انشاءاللہ اب کافی جو ہے اس کا ہو گیا ہے، اب یہ تھوڑی ایکسرسائز کر کے تو انشاءاللہ ہم پھر ہماری اس کے علاوہ جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آ رہا ہو تو آپ لازماً اس کو لکھ لیا کریں، سر کا لیکچر سنتے ہوئے یا پھر جو ایکسرسائز کرتے ہوئے یا پھر آپ کے نوٹس ہیں ان کو پڑھتے ہوئے، جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آئے تو آپ لکھ لیا کریں تاکہ ہم اس کو کلاس میں ڈسکس کر لیں، اور باقی جو ہے اس طرح کے کوشچن آپ منہاج العلم گروپ ہے اس میں شیئر کیا کریں تاکہ جو ہے ہمارا دوسروں کو بھی ان کے بھی نالج میں اضافہ ہو کہ اس طرح سے اس طرح سے آنسر کوئی یعنی کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کا آنسر کرے، جیسے اس دن ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس نے آنسر کیا اور بہت اچھے آنسر کیے، تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنی کوئی بھی کیوریز ہوں بیچ میں کسی ویک میں کسی دن آ جائیں تو منہاج العلم گروپ میں لازماً اس کو شیئر کریں، یا پھر ایکسرسائز کرتے ہوئے کچھ مسئلہ ہو۔ تو اب جو ہے نا ہمارے ساتھ رول نمبر 80 ہے، رول نمبر 80 آپ جو ہے اب ہم عربی میں ترجمہ کریں، ٹھیک ہے، عربی میں ترجمہ کریں، اس کے جو ہے آپ شروع اس کا کریں وہ دو مؤنث داخل ہوئیں۔ رول نمبر 80 آپ ہیں؟ کون تھا؟ میم شاید السلام علیکم میم، مائک کا مسئلہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میم وعلیکم اس میں السلام۔ غائب کا صیغہ ہے دخلتا، داخل آتا، اب اس میں فاعل کیونکہ یہ پورا ایک یہ کیا ہے پورا جملہ فعلیہ ہے، اس میں جی جی فاعل پلس
यानी कि फेल प्लस फाइल होता है, इसमें फेल क्या है और मैं फाइल क्या है, दोनों चीजें बता रहे फेल दाखला ता है और अलीफ इसमें वो है फाइल है। हैं। दाखला ये हो गया, फेल हो गया, ठीक है। दाख और ता प्लस इसके साथ ता, ता मुन्नस के लिए ता आ गया, ठीक है, ता। जी और और अलीफ फाइल प्लस अलिफ आ गया, ठीक है। ये किसकी जी ये जो निशानी हुई, वो दो मुन्नस, तो ये दो के लिए क्या हुआ, ये जो अलिफ इस्तेमाल हो रहा है ये दो के लिए होगा, दो जी के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। तो फिर जी अगर मैम कोई भी मुअन्नस चीज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि दो मुअन्नस चीजें, ठीक है। एक जी कुरान पाक की आयत में पढ़ रही थी, कानता रतकन, ठीक है, कुछ इस तरह से था, फफतकनाहुमा, ठीक है, जी कानता जी रतकन फफतकनाहुमा, कानता, ठीक है। तो इसमें ता देखिए आया, तो इसका मतलब है वो दो, ठीक है, दो के लिए इस्तेमाल हुआ, मतलब हमने, और वो फिर ता भी साथ आया तो हम कहेंगे दो मुअन्नस है, जो कोई दो चीजें हैं जो मुअन्नस हैं, ठीक है। तो फिर इसलिए ता भी जी साथ इस्तेमाल हुआ। तो ये जी जी अब ठीक है। अब नेक्स्ट आप करें। उस मुज़क्कर ने इस सजदा मुज़क्कर ने, किया जी, तो इसमें है साजदा, ये इसमें वो अच्छा इसको मुस्तर मुस्तर वो सॉरी है वो है फाइल, इनके छुपा हुआ फाइल है, हाँ फाइल छुपा फेल हुआ है प्लस इसमें फाइल है, साजदा लेकिन जमीर जो फाइल की जमीर मुस्ततिर है, मतलब छुपी हुई है, तो जी फेल प्लस फाइल, तो हमारा आ गया। इसी में अगर पूछें कि फाइल की जमीर क्या है, तो आपने कहा है मतलब कि फाइल मुस्ततिर है और ये हुआ के कायम बराबर है, मतलब हुआ की जमीर इसमें जी मुस्ततिर है। कौन सी जमीर मुस्ततिर है? हुआ हाँ हुआ की जमीर मुस्ततिर है, हुआ क्योंकि हुआ जी की जी जो है मरफू मुत्तसिल जमीर में कोई ऐसे कुछ नहीं है कि हम लगा सके आगे, तो फिर इसलिए उसको मुस्ततिर रखते हैं। तो ये इसका जो जी कॉम्बिनेशन जो है उसकी हरकत का सीन के ऊपर जबर और दाल के जो फा कलमा के ऊपर जबर और दाल जी कलमा के ऊपर जबर है, ठीक है। ये हमारा निशानी है कि ये फेल है, ठीक है, फेल माजी है। और जो आइन कलमा है, आइन कलमा की हरकत जो है वो बदलती रहती है, वो एक वेरिएबल है हमारा आइन कलमा की हरकत। तो ये जी हमारे मैम हमने ये कैसे पता चलेगा कि आइन कलमा में हमने जबर लगानी है, जेर लगानी है या पेश लगानी है? ये कैसे पता चलेगा फाइला फा मैम ये तो पता था तीन फाइला हमारे पास फाइला औजान है ना, फाउला नहीं हाँ हाँ वही तीन, ये तीन माजी के औजान हैं हमारे पास, ठीक है, हाँ फाला, हाँ जी फाउला और फाइला। तो लेकिन हम कैसे जी पता चले, हमारे पास एक मादा है, जैसे हमारे पास एक हमने कहा मेरे पास जीम लाम सीन, तीन हरूफ है जी मादा की, चलो ठीक है। मैं जी अब जी कहूँ जी कि इसके अब आइन कलमा है, लाम जो है, अब उसमें मैं कौन सी हरकत दूं, मतलब फर्स्ट वाली हरकत अगर ये माजी मारूफ है यानी कि एक्टिव वॉइस है, तो मैं इसको जबर आराम से दे दूंगी, फर्स्ट फा कलमे को भी। और लाम कलमा जी जो है ना उसको भी मैं जबर दे दूंगी क्योंकि ये फेल माजी है। लेकिन आइन कलमा की जो हरकत होगी ना, मुझे उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो फिर मैं क्या करूंगी? नहीं, मैम इसका एक्सप्लेन करते नहीं मैम नहीं मैं जहन में है बताऊं? जी मैम यही आप उन्होंने बताएं। यही बताया था कि वो हमें अरबी से ही लेनी पड़ेगी, उनकी डिक्शनरी से, क्योंकि ये उन्होंने ही बिल्कुल, लगाई है। ये लुगत से हमें पता चलेगा, ये उनकी अरबी अपना उनकी है लैंग्वेज, जिस तरह से उन्होंने जोन सा भी फेल इस्तेमाल किया हमें उसी तरह से वो अरबी डिक्शनरी से पता चलेगा। जैसे डिक्शनरी इसलिए वो फेल के लिए बहुत जरूरी है, वो जो शेयर की गई जिसमें हम मादा के तीनों हरूफ डालते हैं, तो वो फिर हमें उनकी हरकत के साथ है वो बता देते हैं। जैसे हमने शीन रा बा डाला, तो अब उन्होंने हमें बता दिया कि ये शारी बा है, यानी कि आइन कलमा के ऊपर रा जो आइन कलमा है उसके नीचे कसरा आना है, ठीक है। तो वो ये हमें जी ये हरकत कौन सी हरकत टाइम कलमा के ऊपर आएगी वो हमें डिक्शनरी बताएगी। ये नहीं कि आप अपनी जी मर्जी से इसकी हरकत लगा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से अरब ने इसको हरकत के साथ इस्तेमाल किया हम वही हरकत रखेंगे, ठीक है। जी अब इसका मिस नेक्स्ट है हम आप काइंडली चार्ट सेंड कर देंगे रिसेंट अगर ग्रुप में जो मबनी इस्मा के हवाले से और मुत्तसिल आप मुनफसिल मिनहाजुल इल्म ग्रुप में है, जो आपने किया आप मिनहाजुल था। जी इल्म मिस ग्रुप में मैं है, हूँ। तो आप जी देखिए जी ऊपर पिन अब किया हुआ अगर है तो इसी मरफूम वीक आपने मुत्तसिल किया है तो जमात। मैं देख लूँ। जी जी हाँ, दो जी दिन ठीक है पहले मैं किया, देख अभी लूँ। कल ही सेट किया। जी मिस ठीक है जजाक। अच्छा नंबर, इन सब मुजक्कर ने सुना, जी मैम इन सब मुजक्कर ने सुना, सामी इसको मैम सामी
چلے میں اس کو لکھتی ہوں، آپ نے مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ سامی او، اس میں جو ہے فا کلمہ کون سا ہے، آئین کلمہ کون سا ہے، اور لام کلمہ کون سا ہے؟ سا میم سین زبر سا جیسے ہے، سین، آئین کلمہ سین کون سا سے ہے؟ سین میم عین. سین میم آئین، یہ تین ہمارے پاس ہے۔ یہ سین آئین فا کلمہ ہے، میم آئین کلمہ ہے، اور آئین جو ہے اور یہ لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب اس کو ہم ڈالیں گے اپنی ڈکشنری میں، تو یہ آگے ہمیں بتا دے گا کہ اس کی آئین کلمے کی حرکت پہ ہمیں کسرہ دینا ہے، سامی آ بنانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ جی، مطلب تو کہ ہمیں اب اس ڈکشنری کو سے ہی جو ہے، پتا چلے گا. جی بالکل یہ ڈکشنری سے پتا چلے گا۔ ان سب مذکر نے سنا، تو اس میں جی ان سب ہمارے پاس جو فائل ہے وہ کون ہے؟ میم فائل یہ واو الف واو جو ہے یہ اس کا فائل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الف فائل جو ہے. ہے وہ ویسے ہی لگاتے ہیں، اس کی کرسی ویسے ہی اس کو اچھا لگاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ہوتا نہیں، نہ اس کی تجوید میں بھی اس کی کوئی پروننسیشن نہیں کی جاتی، تو اس کو واو کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ بس یہ عربیوں کا یہ رول ہے کہ جی واو جمع جو ہوتا ہے یہ واو جمع کہلاتا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے؟ تو اس جی کے آگے میم وہ الف لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے اس سے یاد آ گیا، سورہ جمعہ کی بھی جب تلاوت کرتے ہوں گے، سورہ جمعہ کے دن کئی لوگ اکثر کرتے ہیں فتمنا الموتا، ٹھیک ہے؟ کرتے ہیں نا کہ اس کے پڑھتے ہیں تو اس کے واو جو اس کے اوپر ضمہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جی ایک ان کے ملانے کے لیے دیا گیا ہے، وہ بھی تھا جی فتمنا، ٹھیک ہے؟ وہ تھا، وہ ساکن نہیں تھا واو بھی، وہ بھی واو جمع ہی ہے، لیکن اس کو ضمہ دیا گیا، وہ آگے ملانے کے لیے حرکت دی گئی ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جی اگلا جو اس کا تھا نا الموتا کا جو الف تھا وہ حمزۃ الوصل تھا، اور جو جی لام جی تھا وہ بھی ساکن تھا، لام تعریف تھا وہ، فتمنا الموتا۔ تو کیونکہ ہم اس کو علیحدہ نہیں پڑھ سکتے، تو اسی طرح سے ہم ملانے کے لیے جب تجوید کرتے ہیں ملا کے پڑھنے کے لیے، تو پھر ہم مختلف اس کو حرکات دیتے ہیں۔ اب کہاں پہ کون سی حرکت دینی ہے یہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، جس طرح سے عربیوں نے دی ہوئی ہے کسی چیز کو حرکت تو اس کو دی ہے۔ یہ واؤ جمع ہوتا ہے، اس کو وہ دمہ دیتے ہیں، اور بھی بیشتر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے یہ پڑھتے ہوئے تو آپ کو واؤ جمع کے اوپر دمہ نظر آئے گا کہ ملا کے پڑھنے کی خاطر۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کہاں پہ یہاں پہ واؤ کی جو ہے وہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ جی میم جیسے اس سامعین ہے، اگر ہم اسے کسی کے ساتھ ملائیں گے تو پھر واو کے اوپر ہم وہ مطلب کہ اس کو پیش کر دیں گے. جی ابھی میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی ہے، میں ابھی اس کے بعد قرآن پاک کھولوں گی، آپ کو دکھاؤں گی، سورۃ الجمعہ میں ہے، تو اس میں اور بھی بڑی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، اب مجھے صورتوں کے نام یاد نہیں ہیں کیونکہ پڑھاتی رہتے ہیں، تو اس لیے جب قرآن پاک پڑھاتی ہوں تو اس میں بڑی جگہوں پہ آتا ہے، تو کیونکہ یہ سورہ جمعہ کا مجھے یاد رہ گیا تو میں نے اس لیے ابھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ دعو اللہ، یہ کچھ اس طرح کا بھی ایک ورڈ ہے، دعو ہے نا، تو اس میں بھی جو واو جمع ہے اس کو دی ہوئی ہے، دمہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو واو جمع کو دمہ دے کے آگے ملاتے ہیں۔ ایک میں نے آپ کو میم جمع کا بھی بتایا تھا جو انتم اور ہم میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ انتم میں اور میم جو ہم میں آتی ہے وہ بھی جمع کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہ جو جیسے ہم میں آتی ہے تو یہ بھی ایک جمع کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان کو بھی میم جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ واو جمع کہلاتی ہے کیونکہ یہ جمع کے صیغوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور وہ میم جمع کہلاتی ہے، میم کے صیغوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جی ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو اس کو یہ نہیں کہ آپ اس کو کوئی اسٹریس لیں اس کا، لیکن یہ آپ کے نالج کے لیے بتا دیتی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ جی اب نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے سنیلا، اب ان کو کسی کو بلائیں جنہوں نے پہلے نہیں کیا۔ جی میم، ہمیرا آپ آئیں گی 68 رول نمبر 37۔ جی میم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا نمبر اب 4 والا ہمارے پاس سینٹینس ہے، تو مؤنث نے کھایا۔ تو مونس نے کھایا، کھایا کا ترجمہ تو اکلا ہوگا۔ اب یہ جو مخاطب مونس ہے تو اس کے لیے جو فاعل مرفوع ضمیر جو ہوتی تا
ताज़ेर ती यानी ती इस्तेमाल होगा। तो इस तरह ये जो है अकलती हो जाएगा। ये मरफू माशाल्लाह, ज़मीर बारक अल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ, मरफू मुत्तसिल ज़मार हमने ता जेर जो ती के साथ था, जेर के साथ था, वो लगाया, तो ये हमारा मुकम्मल एक जुमला फेलिया बन गया, फेल प्लस फाइल। तो ये तू मुन्नस ने खाया। और जी नेक्स्ट जी समझ गई। तुम सब मुज़क्कर गए। तुम सब मुज़क्कर गए, ये भी हाजिर का सीगा है। और इसके साथ भी जो है इसकी फाइल मरफू ज़मीर जो है वो तुम इस्तेमाल होगी। तो गए का होगा ज़हाबा, तो अब ये बन जाएगा ज़हाब तुम, यानी तुम सब मुज़क्कर ज़हब गए। ज़हब तुम आ जाएगा, और ये तुम सब मुज़क्कर के। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। नेक्स्ट नंबर 6। ये भी कर लूं, तुम सब मुअन्नस ने खोला। खोला के लिए फतहा होता है, और ये भी जमा मुअन्नस फाइल है यहाँ पे, तो इसके लिए तुन्ना इस्तेमाल होगा। फाइल के तौर पे तुन्ना इस्तेमाल होगा जमा के लिए। तो ये बन जाएगा फतह 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 तुन्ना। फतह 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 तुन्ना। तुन्ना। फतह तुन्ना। बारकल्लाहु फीकुम। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, आपने साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें फाइल कौन सा है, फेल कौन सा है, और उसको हमने किस तरह से अटैच किया है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। नेक्स्ट बनाए रोल नंबर। रोल नंबर 80, रुबीना, आप हैं? जी जी। जी, सबर तो चलिए, अच्छा, अब आपने सबर। नंबर 7 करना है। अच्छी से रुबीना, आपने नंबर 7 करना है। जी जी, ये सबर तुमा इसमें ये गायब की ज़मीर है, मुसन्ना। हाँ, मुसन्ना गायब की ज़मीर है। मुसन्ना गायब के लिए हम फिर कौन सा अटैच प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं फेल के तुमा आगे? तुमा ये इन तुमा दो मुज़क्कर है ना। अच्छा, इन दो मुज़क्कर, आप इन अल्फाजों से ध्यान रखना, इन दो मुज़क्कर है। ये तू दो मुज़क्कर नहीं लिखा हुआ, या तुम दो मुज़क्कर नहीं है। अच्छा। इन दो मुज़क्कर मतलब ये गायब का सीगा हो गया ना। और जब हम इन वो या उसके अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो ये मतलब हमारे पास गायब का सीगा आ गया। ठीक है। अच्छा देखो, आप जी। ये गायब हो गया, अब गायब में आप इसको ढूंढे कहाँ पे। इन दो मुज़क्कर ने सबर किया। सबर सबर हुमा। नहीं, अब हमने हुमा का लगाया था, हमने क्या कहा था कि अब देखिए, पहले हम चले, हम पहले फेल ले लेते हैं। हमारा फेल क्या है इसमें? मुझे इसके अंदर, सबरा। हाँ हाँ, साबारा हमारे पास फेल है। ठीक है। जी अब जी जी। हमारे पास, हमने इसके साथ फाइल अटैच करना है। ठीक है। तो हमने कहा था हुमा जी के मुकाबले में, जब हुमा जो है ना मरफू मुनफसिल जमीर है हुमा, तो इसके लिए निशानी के तौर पे जब मुत्तसिल जमीर लेके आते हैं, तो वो उसका सिर्फ अलिफ लेके आते हैं। ठीक है। उसका क्या लेके आते हैं? जी। सिर्फ अलिफ। अलिफ। जब अटैच अटैच इसको कर देते हैं ना फेल के साथ, तो वो सिर्फ इसका अलिफ लेके आते हैं। सबरा। साबारा। तो ये हमारे पास आ गया, मुसन्ना का सीगा आ गया, मुसन्ना जी गायब मुजक्कर का। जी। अब नेक्स्ट करते हैं हम। हमने रिस्क दिया। पहले आप फेल को पहचान लें, इसमें फेल कौन सा है, फिर हम इसके साथ फाइल अटैच करते हैं। फेल कौन सा है? फेल जो है रजक, रजक का है। रजा का। अच्छा, इसका आइन कलमा फा कलमा कौन सा है? फाला। नहीं, फा तो हमने ये देखा ना, हमने एक इसको स्टैंडर्ड वजन पे लेके आना होता है। मतलब हमारा, आपने कहा राजा का है, तो इसका रा जो है वो फा कलमा है। क्या है? रजा का फा, फाइला। आइन और लाम, ये देखिए फाल है ना हमारे पास। जी हमने कहा फा कलमा जो है वो रा है इसके अंदर, राजा। और जा जो है वो आइन कलमा है। और कॉफ जो है वो लाम कलमा है। ठीक है। ये हमारे पास आगे जी राजा का। अब इसके जी साथ ये हमारा राजा का जो है, इसके आइन कलमे के ऊपर इसका जो है वेरिएबल था, इसके ऊपर हमने फतहा देनी है। ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी में ऐसे ही है राजा का। अब इसके उन्होंने कहा है हमने रिस्क दिया। अब हम जो है ना इसके अंदर फाइल है, क्योंकि जो करने वाला होता है उसी को हम फाइल कहते हैं ना। जो भी कोई काम कर रहा होता है उसको हम फाइल कहते हैं।
تو اب جی پلس جو ہے نا، ہم اس کے ساتھ کیا کون سی اٹیچ ضمیر ایڈ کریں گے کہ وہ ہم کے بالمقابل آ جائے، ہم کے مقابلے میں؟ بتائیں ہم کے لیے چلے مرفوع منفصل ضمیر بتائیں، ہم کے لیے کون سی مرفوع منفصل؟ رزاقو رزاقو نہیں نہیں، ہم کے لیے ہم جو مرفوع منفصل ضمیر ہے نا، وہ کون سی لے کے آتے ہوتے ہیں ہم کے لیے؟ نہ واو. ہم کے لیے کیا لے کے آتے ہیں؟ ناہنو لے کے آتے ہیں نا، ناہنو، اچھا جی 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 ناہنو جی کرتے ٹھیک ہیں ہے نا. نانو جی تو جی اگر ہم نے نانو اس کو متصل کر دیا نا، اب ہم نے تو وہ رزاق مرفوع منفصل ضمیر تھی، ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے اٹیچ کرنا ہے، اب نے ہم اس کو فعل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. تو جی پھر جی ہم کیا کریں رزاق گے؟ اس کا رزاق صرف نا نا جو ہوگا نا، نا، جی جی ٹھیک ہے. رزاق تو جی یہ جی جو نا رزاق ہوگا نا، یہ جمع متکلم کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. جی ہم جی نے رزق دیا. تو پھر آئین، یہ جو ہمارے پاس جو فا کلمہ ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، آئین کلمہ کے اوپر بھی زبر ہے. اب کاف کو ہم نے کون سی حرکت دینی ہے، کون سی علامت اس کے اوپر لگائیں گے؟ کاف کے اوپر زبر کی نا رزاق رزاق رزقنا نا نہیں. اب ہم ایک چیز اور بھی بتائی تھی جب ہم نے فعل ماضی کی گردان بنائی تھی، ہم نے کہا تھا 5 سیغوں تک جو عین کلمہ ہوگا، لام کلمہ، جو 5 سیغوں تک عین کلمے کے اوپر وہی حرکت رہے گی زبر کی. لیکن 5ویں سیغے سے آن ورڈ جیسے ہی 6 سیغہ شروع ہوگا، ہمارا لام کلمہ جو ہوگا وہ ساکن ہو جائے گا، اس کے اوپر علامت سکون آ جائے گی. جی ٹھیک ہے. جی جی اب یہ کیا، اس کو پھر ہم کیسے اس کو اب پروننسیٹ کریں گے؟ کاف کو ہم نے دے دیا علامت سکون دے دی، رزق نہ. رزاق اب نا اس کو ہم نے رزاق جوائن، ٹھیک ہے. رزاق نا جی سمجھ آئی آپ کو تھوڑی؟ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے اس وقت، زیادہ نہیں آ رہی. چلیں میں چلیں اتنا انشاءاللہ پڑھ پھر نہیں آپ پا ایک رہی. پریکٹس کریں نا تو انشاءاللہ آ جائے گی. چلیں جی آپ اپنا مائک کلوز کریں. رول نمبر 38 ہے. آپ نیکسٹ آپ کریں نمبر 9. نمبر، السلام علیکم وعلیکم السلام. جی. نمبر 9 ہے تو مذکر بیٹھا. اس میں فعل جو ہے جلسہ ہے، اور یہ تو جالسا. مذکر حاضر، واحد حاضر ہے یہ. تو اس میں تا جی کی اس میں ایکشن ہو جائے گی، فائل جو ہے وہ تا آ جائے گا، جلستا. جلستا. اور ہم نے سین کو کیا کیا ہے؟ لام کلمہ اس جو میں تھا اس کا، اس کو اس ساکن کو کر ہم دیں نے گے. اس ہاں کو یہ چھٹا ساکن وہ کر دیا کیونکہ سیغہ ہے تو ہاں اس کو چھٹے ساکن سے کریں آگے گے. آن ورڈ ہے. ہاں جی. 6 سے 8 آن ورڈ ہے تو جلستا ہو گیا. اسی ہے، اس میں ففتھ سے ہے فیل نا، پلس ففتھ فائل. سے ورڈ جو ہے ہاں وہ ساکن ہوتے ہیں. وہ ذہبنا جیسے ہے نا، جی لاسٹ والا جی جی ذہبنا، بالکل. اس کے بعد. اچھا. تو جی دو اس سے آگے جتنے بھی ہیں اس کے جی تم دو لام کلمے کو ساکن کریں گے. ساکن آ جائے گا. تم دو مذکر نے مدد کی. تو اس کا فعل جو ہے جی. نصارہ، اور ہوں. اس یہ ہے کہ حاضر مثنیٰ، اور اس میں تما آ جائے گا. تو اس جو لا کے وزن پہ ہے اس پہ ساکن آ جائے گا، نصر تما. نصر تما. ماشاء اللہ بہت اچھا. نیکسٹ، اس مونس نے ظلم کیا. اس میں ظلمہ فعل ہے اس کا، اور اس یہ ہے اس نے ظلم کیا، تو یہ غائب واحد کا صیغہ ہے، اور یہ آ جائے گا ظلمت. ظلمت، کیونکہ یہ تائی تانیث کے ساتھ لگی جو کہ ساکن ہاں حالت میں ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ظلمت آ گیا واحد مونس غائب کے لیے. میں نے نفع دیا. ماشاء اللہ. یہ نفع کا جو ہے فعل ہے، اور میں نے جو ہے اس میں تو کا صیغہ آئے گا، متکلم کا، واحد متکلم کا. تو نفع اتو، ہوں. اور لام کے وزن والا عین جو ہے اس پہ ساکن آ جائے گا. جی ماشاء تو اللہ یہ جزاک اللہ خیرن کثیرا. اب نیکسٹ ہم اسٹوڈنٹ کو بلاتے ہیں. یہ انہوں نے بس رول نمبر ہی لکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، جنہوں نے 108 ہیں. جی جی میم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر 13 آپ کریں. تم دو ہم، مونس نے سچ بولا. تم دونوں مونس نے سچ بولا. صدق اس میں فعل ہے. صاد، دال اور قاف
मादा हरूफ यानी रूट लेटर्स, और दोनों मुनसों के लिए अनतुमा यानी तुमा, सदक़तुमा, तुमा से बचाना ये फ़ाइल है। काफ को साकिन कर दिया सदक़ा में, सदक़तुमा, और फिर तुमा इसके साथ अटैच किया, सदक़ा फ़ेल और अनतुमा इसमें फ़ाइल है। जुमला फ़ेलिया हाँ, तुमा जो है अटैच ज़मीर आ गई, तुमा अटैच प्रोनाउन हो गया, तो वो ये फाइल हो गया, ये हो गया। और मियाँ बन गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वो सब मोनस बैठी, जलसना, जलसा इसमें फेल है और नून निस्वा से पहचाना, हुन्ना की ज़मीर के अंदर हिडन है, यानी मरफू मुत्तसिल जो ज़मायर है हुन्ना, फ़ाइल हुन्ना है, जलसा फेल है, जलसना यानी जुमला फेलिया बन गया। जी जब कर गायब, जी बिल्कुल माशाल्लाह, बड़ा तू दाखिल हुआ, ये भी कर दो। दलख्ता, दखला इसमें फेल है और ता जी, ज़बर दोबारा ता, इसको बोले। दखला तू दखला दाखिल, इस फेल हाँ है, हाँ दलख्ता दाखला इसमें फेल है और ता ज़बर ता से पेशाना फाइल है जो इसके अंदर है। अंता, अंता फेल है और फाइल दखला है, दलख्ता यानी तुम दाखिल हुआ, तुम एक मुज़क्कर दाखिल हुआ, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, जुमला इस्मिया फेलिया बन गया दलख्ता। दलाख्ता, मैम दखलता, दखलता नहीं, जी, दखलता। दखलता जी दखल ये, फेल और ता ज़बर ता अंता इसमें फाइल है, दखलता। जी जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अब नेक्स्ट को हम देंगे चांस, जो है रोल नंबर 37 ने कर लिया है। जी मैम, कर रोल तो लिया नंबर मैं दोबारा। जी जी रोल नंबर 23 को फिर करें, ठीक है। ठीक है। ये हमने अरबी से अब उर्दू बनानी है, ठीक है। और देखिए ये मुझे तो आसमां से भी ज्यादा आसान लग रहे हैं, अफ़ाल करना कितना आसान है, ठीक है। कि हमने जब इनका तर्जुमा कर रहे हैं तो ये तो और भी इजी है। ये है नंबर 16, जलसत जैन जी जैनबू व फातिमतु व आइशतु। तो इसका माने बनेगा अ, जैनब, फातिमा और आयशा बैठी। जी बैठी। तो ये जो फेल है, ये कौन सा सीगा है फेल गर्दान का। ये फेल का सीगा तो वाहिद मुअन्नथ गायब का है। और क्योंकि इसमें हमारे पास इस्म जो है वो फाइल इस्म जाहिर है, इस वजह से हमने तीन फाइल के साथ एक ही वही पहला चौथा सीगा यूज किया है, जमा मुअन्नस गायब का। जमा मुअन्नस गायब का सीगा इस्तेमाल किया, तो जो भी जो फाइल जाहिर होता है उसके साथ अगर तो वो मुज़क्कर है, चाहे वो एक है, दो है या छह है या जितने भी हैं, अगर मुज़क्कर हैं तो जो है माजी की गर्दान का पहला सीगा, और अगर मुअन्नस है मुअन्नस है तो ये जो माजी की चौथा। गर्दान का चौथा सीगा इस्तेमाल होगा। तो इसमें कोई कंडीशन या फाइल आपके पास एक है या दो है या चार हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप फेल शुरू में लेके आ जाएंगे ना, तो फेल जब बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा तो फिर वो सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। बाकी और ठीक कंडीशन आएंगी जिसमें प्लूरल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो अगर बाद में आए तो। लेकिन अगर जब शुरू में जी आएगा, फाइल से पहले फेल आएगा, तो फिर वो वाहिद ही इस्तेमाल होगा। अब नेक्स्ट ठीक। जलासता। मैम मैं एक सवाल पूछ लूं। जी पूछे। ये जो है मुअन्नस इस्तेमाल हुए ना तीनों, जैनब, फातिमा तो और आयशा तो, अगर इसमें एक मुज़क्कर हो जाए, जैसे जैद आ जाए साथ में, तो फिर फेल कौन सा इस्तेमाल होगा? फिर जो है फेल ना वो फिर मुजक्कर का होगा, फिर मुजक्कर का फेल इस्तेमाल होगा। क्योंकि ठीक। आपने जब पढ़ा था ना, आपने जब जमायर भी पढ़े थे, फिर हमने उसमें भी हमने देखा था, अगर ना मुअन्नस और मुजक्कर दोनों मुज़क्कर इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर जी जी मुजक्कर का इस्तेमाल करते हैं, अरब लोग मुजक्कर का फिर इस्तेमाल करते बस यही पूछना था। जज़ाकिल्लाह मैम। हैं। अच्छा नेक्स्ट जलासता। कौन कर रही थी हमारे साथ।
नंबर 23 कर रही थी। जी जी, मैं ही हूँ। अच्छा, मुझे लगा आप किसी और से पूछेंगी। नंबर 17 है जला सता। ये मुअन्नस मुसन्ना मुअन्नस और हाजिर का सीगा है। और अंतुमा आपने कैसे इसमें जो कहा था, हाजिर? हाँ, आपने कैसे कहा हाजिर का सीगा है? हाजिर का इसलिए कहा क्योंकि जो ता अलिफ है, नहीं नहीं नहीं, हम्म। सॉरी सॉरी सॉरी, हाजिर नहीं है ये है डुअल और गायब, मुसन्ना गायब, मुअन्नस मुसन्ना गायब। क्योंकि ताए तानीस के साथ जो एक अलिफ है वो हमें जो है वो बता रहा है हुमा की जो जमीर इसमें छुपी हुई है, उसकी मुअन्नस मुसन्ना की। जी, तो क्या ऐसे ही तर्जुमा हुआ जी, इसका? तो इसका तर्जुमा जी, होगा दो औरतें बैठी। बैठी। नेक्स्ट भी करें आप, नंबर 18 भी करें। दखलना। दखलना, दखलना इसमें दखला फेल है, और जो नून है इसमें ये बता रहा है कि ये जमा मुअन्नस गायब का सीगा है, और इसके अंदर हुन्ना जो है इसके जो है वो ज़मीर होगी, और उसी का हमें यहाँ से पता चल रहा है कि नून ज़बर इसका फाइल है। हुन्ना की ज़मीर इसका फाइल है, तो इसका तर्जुमा बनेगा वो सब औरतें दाखिल हुई। जी, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अब जो है कुछ चंद मिनट्स रह गए, हम जल्दी से इसको खत्म कर लेंगे और फिर आप अपनी क्लास क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 26 रोल नंबर आप करें। जी मैम। ये अकलत ज़ैनब व फातिमा। अकलत तो जैनब, मैंने मैम ये अकलत है ना, ये मोनस है। वाहिद मोनस गायब नहीं, वाहिद मोनस गायब है। और जैनबू व फातिमा तो फाइल है ये, क्योंकि इसम जायद है यहाँ पे। जी जी, तो और ये क्या तर्जुमा दखला है? हम मैम वो है अ, जैनब व फातिमा नहीं, ठीक है, ठीक है। जैनब व फातिमा ने तर्जुमे में खाया। हाँ, जब हम तर्जुमा करते हैं ना तो उर्दू में फिर हम फाइल को पहले लेके आते हैं, बाद में फेल आता है, लेकिन अरबी में पहले फेल और फिर फाइल। ठीक है। अच्छा जी मैम। जैनब और फातिमा ने खाया। नेक्स्ट, खाया। दाखला ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन। मैम ये दखला आएगा तो मैम ये वाहिद मोनस वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। इसमें हुआ जो अब ये हुआ नहीं होगा, क्योंकि मैम इसमें फाइल इसम फाइल जाहिर है। जैदुन व हामिदुन और व महमूदुन। तो हाँ, जैद और हामिद और महमूद दाखिल हुए। हाँ बिल्कुल, इसमें होगा हमारे पास, क्योंकि ये पहला फाइल सीगा जाहिर है। है तो इसलिए हमने वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा लगाया। जैद, महमूद और हामिद दाखिल हुए। अच्छा, कराऊ। मैम करो का मतलब पढ़ना है ना, जी पढ़ो। जी बिल्कुल। हाँ जी जी उन बिल्कुल, पढ़ो सब नहीं ने पढ़ना पढ़ा। है। हाँ। उन सब ने पढ़ा या पढ़े। तो मैम इसमें जो है ना ये जो ये ये भी गायब का सीगा है, जमा का सीगा है। तो इसका क्या हुआ? उन सब ने पढ़ा। उन उन सब सब ने पढ़ा। किसने पढ़ा? मुजक्कर ने। उन मुजक्कर सब ने मुजक्कर पढ़ा। ने पढ़ा। मुजक्कर ने पढ़ा। चलिए, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। रोल नंबर 63 है, आप जी इसको मैम। नेक्स्ट करें। शारिबा जी हामिदुन व मैम, ये है जईदुन। शारिबा हामिदुन व जैदुन। इसमें क्योंकि फाइल जाहिर है हामिद और जैद, तो इसके साथ हम पहला सीगा लगाएंगे। हामिद और जैद ने पिया। जी, नेक्स्ट। और ज़ाहबा, इसमें मैम ज़मीर छुपी वो है, इसमें क्योंकि ज़मीर मुत्तसिल लगेगी, तो ज़ाहबा ये है मुसन्ना मुज़क्कर गायब। और मुसन्ना मुजक्कर गायब वो का है। वो दोनों मुज़क्कर गए, और इसमें अलिफ इसकी वो है, हुमा इसकी मुनफसिल ज़मीर है और अलिफ इसकी मुत्तसिल ज़मीर है, जो हम साथ अटैच करें। जी। नेक्स्ट, जी। और शरीब तो। नेक्स्ट है शरीबतु। शरीबतु ये मैम शारिबा इसका फेल है, और तू जो है ये इसकी ज़मीर है मैं के लिए, वाहिद मुतकल्लिम के लिए। और अना इसकी मुनफसिल ज़मीर थी, और मुत्तसिल में हम इसकी तू से इसकी पहचान करेंगे।
تو شریبتو میں نے پیا. جی جزاک اللہ. نیکسٹ قرآنن نہیں قرآنا. میم میں نہیں کرنا ہے. جی جی آپ کریں. جی قرانا یہ بھی میم اس میں نا جو ہے وہ متصل ضمیر ہے نحنو کی، اور قرانا ہم نے پڑھا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیوں یہ جو الف ہے اس کو تھوڑا سا جھٹکے سے پڑھتے ہیں، کیوں آیا یہ؟ ہم نے قرانا جی الف کے اوپر یہ کیا جزم ہے؟ لے جزم کی نشانی ہے. حمزہ. اور یہ کیوں جی کیوں نشانی ہوئی جزم کی یہاں پہ؟ میم یہ اس لیے کہ ہم نے سکس جو اس کا سیگا تھا نون زبر نا والا، وہاں سے ہم نے وہاں اس سے کو تھرڈ والے جو لام والا کلمہ تھا اس کو ہم نے ساکن کر دیا تھا، اس کے ہاں آگے تو سب قرآنا ساکن آئیں گے. جی قرانا. ہم نے پڑھا. نیکسٹ قرأتو. قرأت زینب، اس میں میم فائل جو ہے وہ ظاہر ہے، اور یہ میم نہیں قرأت ہے یا قرأت ہے کوئی، ہاں جی نہیں نہیں قرأت. قرأت ہے وہ تو. جی اس میں جی ہم جی اس کے ساتھ چوتھا سیگا ہی یوز کریں گے جو مؤنث ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پاس واحد میں آئیں یا جمع میں آئیں یا مثنیٰ میں آئیں. تو قرأت زینب، زینب نے پڑھا. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. نیکسٹ رول نمبر 72 ہے. آپ اس کو اب ختم کریں تاکہ ہم ذہبوا. بس اسٹاپ کرو، پاس کرو. ذهبوا وہ سب مرد گئے. ذهبا اس میں فعل ہے، اور ہم ذهبوا اس میں ہاں یہ غائب کا صیغہ ہے، اور بولیں کون سا جمع واحد جمع مثنیٰ کون سا ہے؟ جمع اور اس مذکر کی فاعل کی جمع نشانی کیا مذکر ہے؟ غائب. متصل مذکر غائب ہے، جمع جی مذکر غائب. اور اس جمع میں فاعل مذکر کا غائب کیا ہے؟ متصل وہ ضمیر سب کون سی آئی ہے؟ ہم میں سازا. نہیں متصل آئی وہ تو ہم تو یہاں پہ متصل ضمیر کے طور پہ کیا آیا یہاں پہ؟ متصل واو. واو ہے، واو ہے. یہ دیکھیں یہ واو ہے نا، یہ ہم تو نہیں نا ہے، یہ واو ہے. جی جی واو ہے ساز، سوری. ٹھیک ہے یہ ہم کے ہم کہیں گے ہم کے بالمقابل عرب لوگ یہاں پہ واو استعمال کرتے ہیں جمع مذکر غائب کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ با کے اوپر ویسے ہمارا فعل جو تھا ذہبا تھا، تو با کے اوپر پیش کیوں ہے؟ واو سے پہلے پیش آتی ہے. کیونکہ ہاں ویسے تو با تھا ہی تھا، لیکن کیونکہ یہاں پہ ہم نے واو لگانی ہے، تو واو جو ہے نا وہ اپنے سے پہلے قبول ہی نہیں کرتا کوئی اور حرکت کو، صرف وہ پیش کو قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں جی اپنے سے پہلے، جیسے ہم کے نا جائے متکلم ہے، وہ کہتی ہے جی کہ میں نے اپنے سے پہلے کسرہ کو ہی لینا ہے، مجھے کوئی اور حرکت قبول ہی نہیں ہے. تو اسی طرح سے واو کی بھی ہے، اسی طرح کی کوئی ضد ہے تھوڑی سی. وہ واو بھی کہتا ہے میں نے اپنے سے پہلے ضمہ لینا ہے، میں نے اور کوئی حرکت نہیں لینی. ٹھیک ہے. تو پھر اس جی لیے جی جو ہے نا وہ ہم اس کو زبر کو ہم نے پیش میں تبدیل کر دیا، تو جی ذہبو بن گیا. نیکسٹ کریں. جی. ذهب الاطفال اس میں جو فعل ہے وہ ذهبا ہے، اور جو فاعل ہے اطفال ہیں لڑکے، تو ترجمہ ہوگا جی لڑکے گئے، کیونکہ لڑکے اسم اطفال کے لیے فاعل بچے کوئی. اچھا بچے گئے. جو بچ اطفال کے لیے نا بچوں کا لفظ استعمال کریں وہ زیادہ، کیونکہ پھر وہ اولادن یا پھر والدن جو ہے نا وہ لڑکوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. صحیح سر. ٹھیک ہے. اطفال اسم فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے، اسی لیے اس کا جی پہلا صیغہ فعل کا استعمال ہوا ہے ذهبا، اور ہاں جی اس لیے اس بالکل کا ٹھیک ترجمہ ہے. ہوگا بچے گئے. ہاں دخ بچے کے. دخ نیکسٹ. دخلتا فعل اس میں دخلا ہے، اور یہ حاضر کا صیغہ ہے. تو ایک مرد داخل ہوا، اس کا ترجمہ ہوگا. ہاں تا اور جو ہے انتا وہ اس میں ہیڈنگ، انتا کی تا اس میں متصل ہو کر آئی. متصل ضمیر کے طور پہ آئی ہوئی ہے تا جی زبر کے ساتھ. تو داخل تا اس تو کا ایک ترجمہ مرد کیا ہوا؟ داخل ہوا، تو تو مرد ایک داخل مرد ہوا. داخل ہوا ہے. اور جی نیکسٹ لاسٹ والا کر دیں. قراتی کراتی. یہ قرأ فعل ہے، اور یہ جو تی ہے انتی،
मोन्नस तो एक हम्म। औरत ने पढ़ा, इसको हाँ, शो तू कर रहा एक औरत ने है जी। पढ़ा। और ये वाहिद मोन्नस हाजिर का सीगा है फेल प्लस फाइल पूरा जुमला फेलिया बन गया। तो ये हमारे जी। पास है कराती। तो इस तरह से जो है हमारे पास है। इसी तरह से माजी के जितने भी कोई भी हम सलासी मुजर्रद के कोई भी थ्री लेटर्स लेते हैं तो हम उसे पूरी पूरी गर्दाने मतलब हमारे 14 जुमला फेलिया बन जाते हैं उस एक गर्दान के अंदर। जी सर। तो उम्मीद है कि सबको समझ आई होगी। आज ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन नहीं की, जो कि आइंदा से फिर मैं क्लास करूंगी नहीं अगर स्टूडेंट्स ने नहीं ज्वाइन करनी तो। मैम मुझे एक बात तो इसका पूछनी थी। आपको जी आपको मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है जो स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन नहीं करते। मैम वो नहीं रिकॉर्डिंग उस्ताजा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करिएगा, लेट ज्वाइन मैंने कर। बिस्मिल्लाह सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।